सीजन 2 के दूसरे एपिसोड पे हैं। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस आयुष गुप्ता, माय को-होस्ट। आयुष, आयुष, हाय आदित्य सर, आप म्यूट है। शुभंकर है एवरीवन। हाय सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। आयुष सर, बहुत ही शुभंकर, कैन यू प्लीज रिपीट? सर, आयुष और दिशा को Yeah, they are here. I can see them. Ayush Gupta. सो लेट मी इंट्रोड्यूस। सबसे पहले तो आदित्य सर, ही इज करेंटली एज एट कॉलकॉम एज अ वेरिफिकेशन इंजीनियर। और इनका जो सीटीसी है वो हमारे कॉलेज का हाईएस्ट है, दैट इज 24 lakhs पर एनम। इसके अलावा इससे पहले ये सिनॉप्सिस में भी सेलेक्ट हुए थे, वहाँ पर 6 महीने एज इंटर्न भी काम कर चुके हैं, डिजिटल डिजाइन एंड वेरिफिकेशन इंटर्न। और इनका 13 LPA का वहाँ पैकेज था। इसके अलावा आज हमारे साथ है दिशा ओझा, जो कि अभी जस्ट उसका 2nd ईयर खत्म हुआ है। लिंक्डइन का एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है कोचिन, उसमें वो सेलेक्ट हुई है। तो दिशा, कैन यू से हाय? Hello everyone. हाय दिशा। आयुष, हेलो। हाँ शुभंकर, मैं ऑडिबल हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आशीष जाटव, प्लीज अपना कैमरा बंद करना। सो दिशा एक 4 स्टार कोडर भी है कोडशिप पे, एंड we'll start with दिशा। सो दिशा, Yeah, sir. वेलकम टू टेक्निक। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेट्स पूरी ट्रिपल आईटी की तरफ से, क्योंकि 2nd ईयर में इतना एक्टिव होना बहुत ही कम लोग होते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स। Thank you, sir. सो क्या व्हाट एग्जैक्टली इज लिंक्डइन कोच? Okay. So LinkedIn Coaching is actually a mentorship program for second year girls. Okay. So it is one of those diversity hiring programs which most of these big tech companies are having in one form or the other. Some have in the form of scholarships, some have in the form of mentorship, and some in the form of internships too. So LinkedIn came up with this kind of a mentorship program. Its duration is of 4 months, and each of the selected mentee is actually paired with a mentor who is actually a software engineer working at LinkedIn. So we are provided with a one-to-one mentorship where the mentor guides us throughout our path. They are basically preparing us better for our technical careers, that is our internships and placements. So they provide us resources to prepare for that. I mean, we have mock tests, we have mock interviews, and some resume guiding sessions, and pretty much everything for the upcoming internships and placements. So after this program, we would be given a chance to interview for the LinkedIn Summer Internship 2022. Yeah, that's it. So you are muted. ओके, तो काफी कूल है। लिंक्डइन वाले ही मेंटोर कर रहे हैं और चांस मिलेगा डायरेक्टली इंटरव्यू करने का लिंक्डइन की जो समर इंटर्नशिप्स होती है उसके लिए, राइट? Yes. ओके, सो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है Okay. एंड इसके बारे में पता कहाँ से चला? क्योंकि जनरली लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं होती है। Actually, this year it was the second cohort of the LinkedIn coaching program, इसलिए ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था, and even Google पे भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है. So this year this opportunity came in, I think, mid-March. So one of our seniors sent the link to apply to this program on one of the WhatsApp groups. So I did apply through that link. I think it was a basic registration form consisting of your basic details, your name, mail ID, and instead of the resume they asked for the LinkedIn profile. So जो भी shortlisting थी वो LinkedIn profile के basis पे हुई थी, resume के basis पे नहीं.
So, I mean, if anybody here does not have a LinkedIn account, please create one and keep your LinkedIn profile updated. So last year ये एक ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी. आई मीन इट वाज ओनली फॉर 7 कॉलेजेस इन बैंगलोर, जिसमें से आई थिंक 10 गर्ल्स वर selected. But this year they have made it completely off campus, open to all engineering colleges in India, and even open to all the branches. So I think after a very basic shortlisting, which was done on the basis of the LinkedIn profile, एक HackerRank test था of 2 hours. So it had 3 coding questions and 1 essay type question. So the essay type question was like, why you want to be a part of this program and why are you fit to be a part of this program, and that we had to describe in about 150 to 200 words. तो ये जो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आई मीन ये स्कॉलरशिप्स, जैसे गूगल की स्कॉलरशिप का भी हम लोग जब एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर भी इस टाइप के एसेस लिखना रहता है. सो दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर सिलेक्शन क्राइटेरिया. So apart from this, there were 3 coding questions which I found it to be comparatively on the easier side. I mean, उसमें कोई advanced data structure या trees, graphs ऐसा कोई concept नहीं था. They were basic greedy kind of questions. We can say I think code forces B level के questions type का था. So here I think time played a very important role for the selection, because तीनों क्वेश्चंस करने के बाद इवन आफ्टर पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस और अच्छा सा ऐसे क्वेश्चन लिखने के बाद भी बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था. सो आई कंप्लीटेड द 2 hours टेस्ट इन जस्ट 1 hour. सो इन टाइप की टेस्ट में आई मीन टाइम ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So after this HackerRank test, some people were shortlisted, and then we had a phone screening round. So phone screening round was basically एक HR kind of round था, where the HR at LinkedIn called me, and we had about 20 to 25 minutes of chit chat session. Uh, where she asked, yeah, should I continue? माइक ऑन है वो यार ऑफ कर दो. हाँ दिशा कंटिन्यू करो. Okay. So she just asked me about my projects, my achievements, some behavior type of questions. Again, the same thing which was asked in the essay, like why you want to be a part of this program, and again why you are fit to be a part of this program, these kinds of questions. So after this phone screening round, this was the last round, and after this 40 girls were selected all across India for the cohort 2 of the LinkedIn coaching program. So fortunately I was one among them. Okay, so that is cool. And इसके लिए प्रिपरेशन क्या क्या रही है? So preparation wise बहुत कोई specific preparation नहीं थी. I mean I knew C++ from my school. I mean basic syntaxes like loops, arrays, etc. And I did love solving some problems. So I started with HackerRank. I practiced for some time on HackerRank, gained some badges, some 5-star, 6-star badges. Then I gradually moved to CodeChef and gave some long contests on CodeChef. Then gradually shifted to Codeforces and practiced some short contests on Codeforces. Actually, all these helped me with my problem solving skills, which ultimately helped me clear that coding round, which was the first round for the LinkedIn coaching program. Or apart from this, I also learned web development, I think in my at the end of my 3rd semester, and built a few projects based on that, which I had a discussion in the second session, that was the phone screening round. So I think all these things helped me to get to be a part of this LinkedIn coaching program. Okay, so बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जस्ट कुछ लॉन्ग कॉन्टेस्ट्स में लगे रहते हैं. ठीक है, तो क्या शॉर्ट कॉन्टेस्ट जो किए कोड कोर्सेज पे, उसने कितना इसमें ऐड किया है? सर शॉर्ट कॉन्टेस्ट ग्रेजुअली हमें शॉर्ट कॉन्टेस्ट पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा, बिकॉज जो भी कोडिंग राउंड्स रहते हैं या कभी इंटरव्यूज में भी हमें शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है. स्टार्टिंग हम लोग लॉन्ग कॉन्टेस्ट से इसलिए करते हैं बिकॉज 10 days का टाइम रहता है हमारे पास, एंड उस टाइम में हम लोग कभी कोई क्वेश्चन में कोई नया कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हमें नहीं आता, सो दैट वी कैन लर्न इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. बट ग्रेजुअली हमें क्या कहते हैं शॉर्ट कॉन्टेस्ट पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा, बिकॉज वी नीड टू हैव द स्पीड. जैसे मैंने कहा था कि ये फर्स्ट जो HackerRank टेस्ट था, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से इजी आए थे, तो जितने टाइम में हमने जिसने जल्दी कर दिया उसका सिलेक्शन हो गया, जिसने नहीं किया उसका नहीं हुआ. सो स्पीड मैटर्स हियर, इसलिए शॉर्ट कॉन्टेस्ट पे आपको ग्रेजुअली शिफ्ट होना ही पड़ेगा. Okay, cool.
So there is a long-standing debate about DSA or CP versus Dev. Yeah. So what do you say here? सर डीएसए और डेव ये तो आई थिंक बेसिकली हमको करना ही पड़ेगा, बिकॉज डीएसए कोडिंग राउंड्स में आता है। हर एक कोडिंग राउंड में आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम आना ही चाहिए। देन आपके क्या कहते हैं रेज्यूमे के लिए यू नीड टू हैव प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स आप डेवलपमेंट सीखेंगे, उसके ऊपर कोई भी स्किल पे, इट कुड बी वेब डेव, इट कुड बी एमएलएआई, किसी पे भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सो डेवलपमेंट और डीएसए तो बेसिक है ही। नाउ सीपी इज लाइक आप कुछ एक्स्ट्रा स्टैंड आउट करने के लिए करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो जो सीपी होता है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो इट्स लाइक जस्ट लाइक इट्स अ बोनस टू आर डीएसए। और फिर कोडशिप और कोड फोर्सेस की रेटिंग्स भी हमारे रेज्यूमे में बहुत अच्छा स्टैंड लेती है एंड ऑल दैट। ओके, तो कुछ टेक्निकल राउंड्स के लिए DSA इज अ मस्ट, फॉलोड बाय CP एंड डेव थोड़ा क्योंकि हम इंटरव्यूअर को एंगेज करता है। या ओके, तो इसके अलावा अभी हमारे काफ़ी सारे यहाँ पर कुछ जूनियर्स हैं जो सेकेंड ईयर में आएंगे, उनके क्या क्या एडवाइस है? Okay, so I think the most important advice which I can give to my juniors is to start coding as early as possible. I think ये एडवाइस हमें सब हर सीनियर अपने जूनियर को देता है, बट बहुत बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं। आई मीन इवन आई ऑल्सो डिड नॉट डू एनी काइंड ऑफ कोडिंग इन माई फर्स्ट सेमेस्टर, विच आई डू रिग्रेट अ लॉट. But just start doing coding as early as possible, because there are so many opportunities, especially for the first and second year students. तो जितना ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करेंगे उससे आपको एक एज मिलेगा, एंड स्पेशली फॉर द गर्ल्स देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़. तो आई थिंक बेसिकली एक स्टार्ट के लिए हर कोई यू कुड स्टार्ट लर्निंग अ लैंग्वेज. इट कुड बी C++, जावा और पाइथन. आई थिंक दीज आर द 3 मोस्ट common and popular languages for the coding rounds and the interviews. इसके बाद I think one should learn DSA, data structures and algorithms, learn it topic wise, do some learn trees, graphs, etc. And just practice some problems based on that. I mean, you could choose any website that you like. It could be GFG, LeetCode, HackerRank, or HackerEarth. Now, after this, you also have to have projects for your resume. So you could learn any development skill, any field which you like and you're interested in. It could be web dev, it could be MLAI, it could be Android, anything which interests you. So learn that and build a few good projects based on that. आई थिंक ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो शायद सबको ही करनी पड़ती है. और इसके अलावा आई थिंक देयर आर सम थिंग्स विच यू कुड एक्सप्लोर इन योर फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. तो उनमें से दैट कुड मेक यू इवन स्टैंड आउट और दैट कुड ऐड वैल्यू टू योर रिज्यूमे एंड ऑल दैट सॉर्ट. सो उसमें से जैसा मैंने अभी कहा था, इट कुड बी फर्स्ट कुड बी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. So competitive programming helps you, as I said, develop your problem solving skills. And जैसा कि कहा था कि the CodeShip and CodeForces ratings also add a lot of value to your resume. फिर इसके अलावा I mean there are contests like Google Kickstart, Google Hashcode, competitions like ACM, ICPC, which also hold a great value. तो आई थिंक बेस्ट प्लेटफॉर्म जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज CodeForces. इसके अलावा आई थिंक वन शुड ऑल्सो एक्सप्लोर ओपन सोर्स. ये एक अलग अपॉर्चुनिटी है. आई मीन GSOC या गूगल समर ऑफ कोड इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोग्राम बेस्ड ऑन ओपन सोर्स. इसके अलावा आई थिंक देर आर अदर प्रोग्राम्स लाइक आउटरीची एंड गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड. इनका बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी सेमेस्टर का स्टूडेंट हो वो पार्टिसिपेट कर सकता है. एंड आई मीन दिस ईयर आई इवन सॉ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट क्रैकिंग GSOC. So this is a very great opportunity. And apart from this, I think we all can participate in hackathons and even apply to internships. I mean, बहुत से startups और companies है जो first और second year students को भी internship provide करती है. So you could find these opportunities on LinkedIn. I think AngelList is a very good website to find these kinds of opportunities, and also Internshala. So ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग first और second year में explore कर सकते हैं. ओके, सो अच्छा, अब कुछ ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो वुमेन सेंट्रिक होती हैं या सिर्फ गर्ल्स के लिए होती हैं. तो उसके बारे में जनरली हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया
ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती, उनके लिए क्या कहना है? हाँ, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज बिग टेक कंपनीज, आप कोई भी नाम ले लो, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अडोबी हो, या ये लिंक्डइन हो, कोई भी, आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज बिग टेक कंपनीज हैव सम और द अदर काइंड ऑफ प्रोग्राम विच इज स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, एंड दैट टू ऑल्सो फॉर ओनली फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर गर्ल्स। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में एक्चुअली हम लोग जब कॉलेज में आते हैं तो ना तो इतनी अवेयरनेस होती है और ना इतना मन होता है कि प्रिपरेशन इस टाइप की स्टार्ट कर सके, बट इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, और ये आई थिंक getting into these big tech companies is comparatively easier in your first and second year than your than getting internships in your third year or placements in your fourth year. तो जैसे गूगल का एक गूगल फर्स्ट ईयर गर्ल्स के लिए गूगल की स्कॉलरशिप होती है वीटेक। तो अगर जो स्टूडेंट्स ये क्लियर कर लेते हैं उसको स्कॉलरशिप तो मिलती है, वो तो एक एडेड चीज़ है ही, देन दे गेट अ चांस टू इंटरव्यू फॉर स्टेप इंटर्नशिप इनटू देयर सेकेंड ईयर। अब स्टेप इंटर्नशिप मिल गई तो थर्ड ईयर वाली इंटर्नशिप के लिए एक और चांस मिल जाता है इंटरव्यू देने का, देन यू इवेंचुअली गेट प्लेस्ड एट गूगल। सो ये जो टाइप के प्रोग्राम्स है, जैसे ये लिंक्डइन कोचिंग है या गूगल की जैसे स्कॉलरशिप्स है या और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है, इससे हमें एक अर्ली और शायद एक थोड़ा सा इजी स्टार्ट मिल जाता है। हाँ, ये जो स्क्रीन पे सर ने जो एक लिस्ट दी हुई है, ये सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ है। इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हर साल आती है जो फिक्स्ड है, वो हर साल आएगी, और कुछ ऐसी है जो मतलब इस साल आई, अगले साल कुछ और टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ये दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। सो आई थिंक एक अर्ली स्टार्ट मिल जाता है हम लोगों को गर्ल्स के पास, क्योंकि कंपनीज़ को आजकल एक जेंडर रेशियो मेंटेन करना है, इसलिए ये सारे टाइप के विमेन हायरिंग, डाइवर्सिटी हायरिंग प्रोग्राम्स वो लोग लेके आई है। सो इसमें थोड़ा सा कंपटीशन भी कम रहता है, थोड़ा सा, और एक हमको एक अर्ली स्टार्ट मिल जाता है। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रेपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल एंड मेक द मोस्ट यूज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो इसके अलावा आई थिंक कुछ और भी अपॉर्चुनिटी होती हैं जो बॉयज और गर्ल्स के लिए कॉमन होती है, उनके हाँ, बारे में कुछ बता सकती हैं? तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कॉमन रहती है। आई मीन एक है माइक्रोसॉफ्ट का एंगेज प्रोग्राम, जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहता है। आप गर्ल हो, बॉय हो, इट डजेंट मैटर। सो ये भी सेकेंड ईयर के लिए आता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए है। इवन आई थिंक सैमसंग का एक परिचय इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, दैट इज़ फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, बट आई डाउट वो शायद कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए है या सबके लिए है, पता नहीं। बट हाँ, इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हैं। और GSOC बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आई थिंक एवरीबडी शुड अप्लाई टू GSOC। इससे ओपन सोर्स का भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाता है। ओके, सो अभी कुछ दो तीन चीजें हो रही। एक तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अवेयरनेस नहीं है इन चीजों की, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इतनी ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर देते हैं कि कुछ जो प्रोग्राम्स होते हैं 2 दिन के अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाती हाँ। है, या लोग ऑलरेडी उसमें वो लोग शॉर्टलिस्ट कर देते हैं। हम्म। इसके लिए, ये इस अवेयरनेस के लिए क्या किया जाए? लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई थिंक हम जितना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं उसका 10% भी अगर लिंक्डइन स्क्रॉल कर लिया तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज जो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है वो कहीं ना कहीं लिंक्डइन पे आ जाती है। आपको लिंक्डइन पे अपने अच्छे कनेक्शंस बनाने हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको ये अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी। और नहीं तो मतलब हमारे सीनियर्स इतने अच्छे हैं ही, वो कहीं ना कहीं हमको भेज देते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं, तो उतना तो पता चल जाता है। बट लिंक्डइन पे एक्टिव होना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत से टाइम रिक्रूटर्स आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख के लिंक्डइन से ही आपको अप्रोच कर लेते हैं, कि एक अलग फ़ायदा भी है। वो थोड़ा प्रोफाइल की तरफ हो जाएगा। हाँ। हाँ, ओके, तो ये बहुत कूल है। एंड so that was it. Now we'll be moving to Aditya sir, and Ayush will be hosting it. Thank you so much, Shubhankar. I hope I am audible to every one of you. Shubhankar, Yes, am I Ayush, audible you are properly? audible. Yes, Ayush, you are audible. Can you make it a bit louder? Okay. I'll try. So first of all, I express. Shubhankar, just a minute. Shubhankar, we'll share this document. अभी इसको presenting से हटा देना document को, हाँ, because वो recording में problem करेगा। ठीक है। share कर देंगे इस document को बाद में। हाँ। Okay, continue. कोई नहीं।
Okay. Good evening, Aditya sir. First of all, I express a warm welcome to you in this second episode of Tech News Season 2, arranged by Codem. Hello, Aditya sir. Am I audible to you? Yeah, thank you, Ayush, Shubhankar, Technique, like all those people like who are working in background to like make this session happen. So मेरी voice clear है क्या? हाँ, yes sir. आपकी voice काफी clear आ रही है. Yes sir. So first of all, congratulations. Yeah, thank you. Thank you, Ayush. Okay. Yes sir. First of all, congratulations sir. आपके Synopsys के सिलेक्शन के लिए, then congratulations आपके Qualcomm के सिलेक्शन के लिए. So मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आयुष आवाज ब्रेक हो रही है एंड पूरी स्क्रीन फ्रीज हो रही है. अच्छा. ओके. आयुष ऐसा कर सकते हो, तुम अपना वीडियो ऑफ कर लो, तो क्या है कि नेट स्लो होगा तो बैंडविड्थ की दिक्कत नहीं होगी. Yes sir. Am I audible now? Yeah, Ayush. यस सर. तो सर काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे जब टाइम आता है, जो प्लेसमेंट सीजन शुरू होते हैं हमारे जूनियर्स के लिए, नया सीजन शुरू होता है, सेकेंड ईयर वाले जब थर्ड ईयर में आते हैं, फर्स्ट ईयर वाले जब अपनी ब्रांच में एंटर करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. सो बस इश्यूज बहुत सारे तभी अराइज हो जाते हैं, और उनको जितनी जल्दी क्लियर कर लें वो सारे इश्यूज, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है. सो बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर अप्रोच इन द होल इंजीनियरिंग? आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में क्या अप्रोच फॉलो करा? ठीक है आयुष, like अच्छा आयुष, like we have to keep it in English or like I know some of the students from first year like they are not comfortable in English, तो क्या हम मिक्स रखेंगे? सर यू कैन मिक्स इट एज यू लाइक. या तो लाइक अगर अप्रोच की बात करें आयुष, तो लाइक मेरे हिसाब से मैंने एक पैटर्न सुना था अपने सीनियर से, लाइक मेरे सीनियर्स इन द सेंस आप सोचोगे सीनियर्स को लाइक NIT भोपाल सीनियर्स. सो लाइक एक पैटर्न है, लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न, लाइक व्हाट आई हैव फेल्ट इज, फर्स्ट ईयर है तुम्हारा तो थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई करो, कोड करो और एक्सप्लोर करो चीज़ों को यार, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो. क्योंकि तुम कॉलेज में आए हो, लाइक जैसे एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हें वेब डिज़ाइनिंग पता है या कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ें पता है, अगर तुम आते ही सीधे उसमें लग जाओगे ना, चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करोगे, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. लाइक वी हैड अ लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लाइक शुभंकर वाज शोइंग इट. सो हमको अपॉर्चुनिटीज़ पता नहीं होती ना, क्योंकि तो चीज़ें एक्सप्लोर करो ना, मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं उसमें जाओ, मल्टीपल सीनियर्स हैं, सीनियर्स के बारे में पता करो, उनसे पूछो, है ना, लाइक टॉक टू सीनियर्स, तुम नेटवर्क बढ़ाओ फर्स्ट ईयर में. सेकेंड ईयर में यू चूज योर थिंग, लाइक ऐसा नहीं होगा कि यार एक चीज़ चूज कर लोगे, लाइक 2-3 चीज़ रह जाती हैं यार, अपने को प्लेसमेंट चाहिए, अपने को गेट में जाना है या समथिंग, 2-3 चीज़ें रह जाती है. लाइक मैं ओवरव्यू में बात करूंगा सबके लिए, ऐसा पर्टिकुलर सिर्फ कोडिंग वालों के लिए बात नहीं करूंगा, है ना. तो सेकेंड ईयर में 2-3 चीज़ें रहती हैं, 2-3 चीज़ों को ट्राई दो. लाइक इन थर्ड ईयर लग के तैयारी करो, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बचेगी, लग के तैयारी करो अपने थर्ड ईयर में, और लाइक फोर्थ से आपका प्लेसमेंट चालू हो ही जाएगा, है ना. तो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों ट्राई करो, एज हमारा इंस्टीट्यूट नया है तो ऑन कैंपस जितनी कंपनियाँ आ रही हैं सपोर्ट करो TNP सेल को. लाइक फ्यूचर बैचेस हैं यहाँ पे प्रेजेंट, इसलिए बोल रहा हूँ, सपोर्ट करो TNP सेल को, और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज हैं तो डू दैट. तो मेरे हिसाब से ये अप्रोच सबसे बेस्ट है. फर्स्ट इन शॉर्ट में फर्स्ट ईयर में चिल मारो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को, और सेकेंड और थर्ड ईयर से तैयारी कर लो उस मेन चीज़ की, है ना, जिस चीज़ की तुम तैयारी करना चाहते हो, और कनेक्ट टू द सीनियर्स. लाइक जिस तरह तुम काम करना चाहते हो, जिस तरह तुम ग्रो करना चाहते हो, उस तरह के सीनियर्स फाइंड आउट करो, है ना, और उनको अप्रोच करो, उनकी वे जानो. सब देखो सबका अलग अलग तरीका होता है. लाइक वी आर वेरी थैंकफुल टू दिशा हियर, सो शी टोल्ड हर अप्रोच, लाइक सेकेंड ईयर में उसने कैसे कैसे क्या क्या किया, उसकी थोड़ी अप्रोच डिफरेंट है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट मी, मेरी थोड़ी अप्रोच डिफरेंट है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हैं, उनकी अप्रोच डिफरेंट है, सबकी अप्रोच डिफरेंट होती है. तो जितने सीनियर से बात करोगे तुमको उतने तरीके मिलेंगे. सर ये काफी आपने अच्छी चीज करी कि फर्स्ट ईयर में चिल और सेकंड थर्ड ईयर में फिर मतलब लाइक इट्स टाइम टू टाइटन योर सीट बेल्ट्स. तो जो भी हमारे अभी लिसनर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको सच में एक्सप्लोर करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, हाँ इस साल वालों के लिए
काफी डिफिकल्ट टाइम था कोविड सिचुएशंस की वजह से, बट दिस इज अ जनरल प्रूवन फैक्ट कि आप फर्स्ट ईयर में जितना एंजॉय कर पाते हो ना, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में मतलब उतना एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता। इसी के साथ एक और चीज है कि बहुत बार आपको लगता है कि चीजें छूट जाती हैं। सो हमारा नेक्स्ट डाउट यही है दैट हाउ टू मेक श्योर दैट वी हैव नॉट स्किप्ड एनी इंपॉर्टेंट थिंग। Okay. So important thing in the sense I use like we are talking about the career and that program that we are working for. Am I correct? यस सर, एंड मोरओवर मतलब लाइक इन अ जनरल वे एज वेल कि बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है ना पूरी इंजीनियरिंग जर्नी में, तो करियर से रिलेटेड भी प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी सर। या ओके ओके, थैंक यू आयुष। तो जैसे इस चीज़ में एक पॉइंट में बोलना चाहूँगा, लाइक जब मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुम लोग को हंसी आ सकती है सुन के। लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, तो जब मुझे याद है अभी भी, जब ट्रिपल आई टी भोपाल, लाइक उस वक्त फर्स्ट कैंपस था, फर्स्ट कैंपस था, कैंपस ही नहीं था, कुछ नहीं था, इवन हॉस्टल्स भी नहीं थे। तो हम गए थे वहाँ पे, हम क्या कहते हैं, मैं था, मृदुल है, 2-3 दोस्त हैं, तो लाइक वी फर्स्ट रीच आउट द हॉस्टल दैट वाज गिवन इन आरजीपीवी। तो वहाँ पे क्या कुछ नहीं था वहाँ पे, लाइक इवन हॉस्टल्स में हमारे पास पीने के पानी नहीं थे, कुछ नहीं था, लाइक सो वी हैव सेटअप एवरीथिंग ना, एक छोटी छोटी बेसिक ही सेटअप की है वहाँ पे। तो अगर सबका मोटिव अलग हो सकता है यहाँ पे आने का, है ना, तो हमारे मन में क्या था यार, कुछ दे दे चाहे ना दे यार, प्लेसमेंट दे दे बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा में वैसा कुछ नहीं ढूंढा हमने, तो लाइक जस्ट प्लेसमेंट था। लेकिन फिर क्या है कि समय निकलता गया, हम अलग अलग सीनियर से मिलते गए, वो चीज़ होती गई, तो समय के साथ वो चीज़ बदल जाती है। तो अगर मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करूँ ना यार, तो 2-3 चीज़ें तुम सब लोग, जो मैं लाइक सजेस्ट करूँगा, एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यार अपना, जो सोसाइटी या फिर जो लोग, जो भी सीनियर्स तुम्हें मौका दे रहा हूँ बोलने का, पकड़ के मौका लेना है। क्योंकि तुम देखो, जितना तुम लीडर बनोगे, तुम जितना आगे आओगे, चीज़ों को लीड करोगे, बोलोगे ना, लाइक ऑलरेडी तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। लाइक मैं सामने देख सकता हूँ, शुभांकर इज सिटिंग है ना, शुभांकर ऑल्सो नोज दैट, है ना, शुभांकर इज देयर, आयुष इज देयर, है ना, जो टीम है पूरी, ये भी टेक्निक की जो काम कर रही है, लाइक तुम देखो, वो है अपनी पढ़ाई में अच्छे, बट किसी ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं दी है यार कि तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही करना है। लाइक उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले ली? क्योंकि उन्होंने सेकेंड ईयर में देखा सीनियर्स को काम करते हुए, उन्होंने कोई चीज़ें खुद में स्टार्ट की, उसमें इन्वॉल्व हो गए, धीमे धीमे देखो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली या लीडर्स कम आउट। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट मेक अ लीडर। तो वो लीडरशिप वाला जो चीज़ है ना यार, वो मत मिस आउट करना अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जब भी मौका मिले, है ना, डू दैट। और पढ़ाई तो देखो हमेशा साइड में करते रहना, लाइक करते रहना इन द सेंस कि 10 चीज़ें चलती हैं, लाइक हम भी थे, ऐसा एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहिए, हमने हमने धरना दिया है, हमने हमने बहुत कुछ किया है। लाइक जितने धरने हमने दिए हैं, किसी कॉलेज ने नहीं दिए होंगे इतने धरने, हम तो फर्स्ट ईयर से धरने धरने दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइड में करने के लिए, तो वो भी करना है, प्लस पढ़ाई करनी है। तो एक तो अपनी, जैसे दिशा ने बोला था, लिंक्डइन प्रोफाइल, तो लाइक कम ऑन लिंक्डइन, डेवलप योर लिंक्डइन प्रोफाइल, गेट योर कॉन्टैक्ट्स, लाइक बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं लिंक्डइन पे यार, सम आर देयर, दे वोंट हेल्प यू, दे वोंट रिप्लाई। लाइक मैं इसी चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि सच्चाई पता होनी चाहिए। हम कभी क्या है, प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं, ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है रिप्लाई नहीं आएगा। लाइक फॉर ऑफ कैंपस जॉब्स, लाइक देयर इज वन सीनियर फ्रॉम इंस्पायर सोसाइटी, मिस्टर नीलाब आनंद सर, लाइक सम ऑफ यू माइट बी नोइंग हिम। सो लाइक उन्होंने, मैंने उनसे गाइडेंस ली थी, उन्होंने बहुत गाइड किया है मुझे, लाइक आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल टू द सोसाइटी। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी यार कि लाइक हम 100 लोग को जब एप्लीकेशन भेजेंगे ना, ऐसा नहीं होगा सबसे रिप्लाई आ जाएगा। 100 में से ना मुश्किल से, अगर ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो, सो मुश्किल से 3-4 में ही लाइक एक रिप्लाई आएगा। उसके बहुत सारे, आप तो ये सब शुभांकर से पूछ सकते हो, बाकी लोग से पूछ सकते हो जो ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, लाइक शुभांकर टोल्ड मी लाइक ही गॉट इंटरनेट एंड मीडिया। सो वो चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन क्लियर करते करते अपनी प्रोफाइल बनाना है। ऐसा नहीं है कि फोर्थ ईयर में आ जाओगे और एकदम से लिंक्डइन पे प्रोफाइल बन जाएगी तुम्हारी, एकदम से तुम्हारी कोडिंग, कोड फोर्सेस, सारी चीज़ें मतलब एकदम प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट ईयर का एक चीज़ है, लाइक सीनियर्स ने कुछ चीज़ें सेटअप करने की कोशिश की हैं, बनाने की कोशिश की हैं कि यार तुम ये चीज़ कर लो फर्स्ट ईयर में अपने, ये चीज़ कर लो सेकेंड ईयर में अपने, ये चीज़ कर लो थर्ड ईयर में अपने। तो अगर तुम्हें समझ है तो तुम अपने आप अपना पाथ बना सकते हो, अगर उतनी समझ नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट फॉलो दो सीनियर्स। तो बेस्ट एडवाइस ये रहेगी मेरी। काफी स्ट्रेट और काफी अच्छी एडवाइसेस थी सर। तो सर अब थोड़ा सा इस डिस्कशन को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करने की और सोचते हैं। तो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि ये जर्नी काफी लंबी है, जैसा आपने कहा कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर से मतलब लेट्स टाइटन योर सीट बेल्ट्स एट द टाइम व्हेन इट इज नीडेड द मोस्ट, तो उस टाइम पर मतलब सच में ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार कुछ कर लेंगे, कॉलेज से उम्मीद रहती है, जैसा आपने कहा कि आपके फर्स्ट ईयर से थी, ऑब्वियसली जो भी इंजीनियरिंग ज्वाइन करता है और लाइक IIIT इज अ बिग टैग इन द कंट्री, तो जो भी यहाँ पर आता है उसके अंदर पोटेंशियल तो जरूर होता ही होता है। तो जब सेकेंड ईयर से एक चैनलाइजिंग की जरूरत है, तो तब आपको क्या लगता है कि कैसे हमें उस पूरे फ्रेम को एनालाइज करना चाहिए और फिर कैसे डिवाइड करें हम इस पूरी जर्नी को? इन दैट लाइक अगर हम प्रिपरेशंस के टर्म में बोलें तो यार ऐसा डिवाइड करना चाहिए हमें कि देखो फोर्थ ईयर तुम्हारा प्लेसमेंट में जाएगा, तुम ये सोच के मत बैठना कि अब जब मैं फोर्थ ईयर में आऊँगा तो तैयारी करूँगा तो प्लेसमेंट हो जाएगा, ये सोच के मत बैठना। मेरे हिसाब से जो प्रॉपर टाइम है प्लेसमेंट की तैयारी स्टार्ट करने का, मतलब लग के स्टार्ट करने का, एक बेसिक तो तुम्हारी कोडिंग वोडिंग चलती रहती है साइड में, असाइनमेंट्स वगैरह चलते रहते हैं, लाइक जो लग के तैयार करने का टाइम है मेरे हिसाब से यार वो थर्ड ईयर है। सो लाइक थर्ड ईयर मतलब कौन सा सेमेस्टर हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर, लाइक फ्रॉम फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर ना तुम्हें लग के करना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से मानो ना यार तो 6 महीने इनफ है प्लेसमेंट लेने के लिए, किसी से कोई बड़ी कंपनी खोलने के लिए 6 महीने इज इनफ। द थिंग इज तुम 6 महीने यार किस पाथ में, मतलब कैसे तुम वो 6 महीने कवर करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें मॉड्यूल्स ब्रेक कर करके काम करने पड़ेंगे, तुम्हें एक प्रॉपर पाथ पता होना चाहिए, यार इस पाथ से जाऊँगा तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी, इस पाथ से जाऊँगा तो कठिन होंगी। तो इन दैट सेंस लाइक चीज़ें तैयार करने के सेंस में तुम्हें थर्ड ईयर के हाफ से स्टार्ट कर देना चाहिए। और जो लिंक्डइन प्रोफाइल है तुम अपनी वो फर्स्ट ईयर से ही क्रिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोडिंग के अपनी जो रैंक्स हैं लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है कोडिंग करने के, वो चीज़ तुम अपने फर्स्ट ईयर से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें तुम फर्स्ट सेकेंड ईयर दोनों पार्टिसिपेट करो। अच्छा देखो, दो चीज़ें और बोलूँगा, लाइक ये चीज़ें मैंने पहले रियलाइज़ नहीं की लेकिन मुझे अब बहुत रियलाइज़ होती हैं जब से मैंने कॉलकॉम में काम करना चालू किया है। योर कोर सब्जेक्ट्स, है ना, लाइक यहाँ पे ऐसे कोई अच्छा एक चीज़ शुभांकर, लाइक रिकॉर्ड हो रहा है तो ये क्या कोई फैकल्टी देखेगा क्या? मैं कुछ सच बोलना चाहता हूँ फैकल्टीज रिव्यू करेंगी क्या? ऑन कैंपस इनवाइट करने के प्रोसेस में था, लाइक आई वाज इन द टीएनपी सेल, लाइक इसके पहले वाले बैच में, तो मैंने रिक्वेस्ट डाली थी कि सर हम सिनॉप्सिस को ऑन कैंपस इनवाइट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। दे हैवंट हेल्प्ड यू, लाइक आपकी पढ़ाई से छोड़ो किसी चीज़ में हेल्प नहीं करेंगे, दे वोंट हेल्प यू इन एनीथिंग। सो द जो चीज़ बच जाती है ना यार, वो तुम हो, तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम जो बात ट्राई करते हो। तो देखो तीन ही लोग हैं, तुम, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे सीनियर्स, ठीक है। कॉलेज हमसे बनता है, उन फैकल्टी से नहीं बनता, ठीक है। फैकल्टी तुम्हें चीज़ें लाइक जो एडिशनल पॉइंट्स हैं उसमें दो चीज़ें, यार फर्स्ट ईयर से ना यार अपनी जो पढ़ाई है ना तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। अपने बीटेक में अराउंड 48 to 52 सब्जेक्ट्स हैं, नहीं पढ़ने हैं यार पूरे, मुश्किल से 7 से 8 सब्जेक्ट हैं, वो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये इवन सीएससी के लिए भी अप्लाई होता है, सीएसआईटी के लिए प्लस ईसी के लिए। और दूसरी चीज़ें ना यार, जो अगर कोई फैकल्टी अच्छा पढ़ाता है ना यार तो उसकी चीज़ें क्लास में कंप्लीट करो क्लास में। तो अगर ये तो चीज़ तुम करते हो चलोगे ना, ब्रेक डाउन, ये चीज़ ब्रेक कर करके, लाइक अगर तुम सिर्फ फर्स्ट ईयर की ये ड्रीम कर रहे हो ना यार कि बड़ा प्लेसमेंट चाहिए, बड़ा प्लेसमेंट चाहिए, तो यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चीज़ों को ब्रेक डाउन कर लो कि यार मैं फर्स्ट ईयर में सिर्फ इतना अचीव करूँगा कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, सेकेंड ईयर में मैं इतना अचीव करूँगा, क्या कहते हैं कि लाइक मुझे एक लाइक मैं अपना वो कंप्लीट कर लूँ कि यार मैं प्लेसमेंट जाना है, गेट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। थर्ड ईयर में योर एम शुड बी लाइक आई हैव टू गेट एन इंटर्न, ठीक है। योर एम, तो अगर अपने इंटर्न पे काम करो थर्ड ईयर में पूरा पूरा टाइम, क्योंकि इंटर्न का पाथ ही लाइक प्लेसमेंट में होके जाएगा।
और जो फोर्थ चीज़ें हैं, लाइक फोर्थ चीज़ है कि अगर इंटर नहीं मिलती तो ऐसा नहीं है यार किसी को इंटर नहीं मिली तो यार वो उसका कुछ नहीं होगा। थर्ड ईयर में इंटर मिले इट्स वेल एंड गुड, नहीं मिले कोई बात नहीं, फोर्थ ईयर में लग के करो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, हमारे कॉलेज की बेइज्जती ना हमारे आपस में होनी चाहिए मतलब कि यार स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, हाँ नहीं हो रहा यार सर गंदे वो गंदे। कभी अपने कॉलेज की बेइज्जती कॉलेज से बाहर मत करना, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज से बाहर इंस्टीट्यूट का नाम बिल्डअप हो रहा है ना। लाइक मैंने सेकेंड ईयर में इंटर्न किया है, वहाँ लोगों ने मेरे से पूछा कि यार ये कॉलेज कैसा है वो कैसा है, तो ऐसा कभी मत करना कि कॉलेज की बेइज्जती कर देना, कॉलेज में लैब नहीं है वो नहीं है। लाइक मैं कॉलकम में आया था इंटरव्यू में, उन्होंने पूछा किस सॉफ्टवेयर पे काम किया है, तो मैंने पर्सनली बहुत सॉफ्टवेयर पे काम किया था, तो वो मैंने सारे कॉलेज के नाम पे डाल दिए कि यार मेरे कॉलेज की लैब में मैंने ऐसा किया है, कॉलेज लैब में सर कॉलेज में सर डायरेक्ट इस कंपनी का सॉफ्टवेयर चलता है, ऐसा करके बहुत कुछ बोला, ठीक है। तो कॉलेज की बेइज्जती मत होने देना, बस ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम अब ये बात ना अपने जूनियर्स के लिए क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। मतलब कॉलेज डेवलप होता है टैग से, और मतलब कोई भी कॉलेज बिल्ड होने में टाइम तो लगता ही लगता है, और टाइम के अलावा जो बहुत अंडररेटेड सी चीज है वो है आपके सीनियर्स की लेगेसी और सीनियर्स के इफेक्ट, मतलब जो भी उन्होंने एफर्ट डाले हैं। तो ये काफी अच्छी बात बोली सर आपने कि जब भी कॉलेज की रेपुटेशन पे बात आए वी शुड स्टैंड above par. Like इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द ओनली फील्ड जहां आपको सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद काफी बहुत रेप्यूटेटेड जॉब मिलती है। लाइक आप किसी भी फील्ड में जाओगे अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस, आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको जस्ट ग्रेजुएशन के बाद लाइक मेरे को नहीं लगता किसी भी और फील्ड में 42 एलपीए की जॉब मिल सकती होगी, बट इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है, सर ने 24 एलपीए की जॉब हासिल करी है, और ये इंजीनियरिंग में पॉसिबल है। बस टाइम डिवीजन की बात है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे अपने टाइम को डिवाइड करो, अपने पाथ को एनालाइज करो, और सबसे बड़ी बात है चैनल, जब अपन किसी भी चीज को एनालाइज करके थोड़ा बहुत रिव्यू करने की कोशिश करते हैं ना, चीजें ऑटोमेटिकली सुधरना शुरू कर देती हैं। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन एंड प्रोजेक्ट्स। मतलब बहुत काफी बार अंडररेट कर लेते हैं लोग स्टूडेंट्स को, रिवीजन्स को, मतलब प्रोजेक्ट्स की भी इतनी वैल्यू नहीं लगते, बट क्योंकि वो रिवीजन और वो प्रोजेक्ट्स आपको अपने रेज्यूमे में हाईलाइट करना पड़ेगा, और रेज्यूम आपका फर्स्ट फेस है जो कंपनी को आप प्रेजेंट करते हो। तो आदित्य सर प्लीज आप रिवीजन और प्रोजेक्ट्स इन दोनों की इंपॉर्टेंस पर थोड़ा और लाइक एनलाइटन कीजिए हमें। हाँ डेफिनेटली आयुष, तो लाइक सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूँगा। रिवीजन तो एक पर्टिकुलर समय पे करना है, रिवीजन का एक रूल है, आई विल टेल यू, मैंने सीखा है अपने सीनियर से, रिवीजन का एक बहुत अच्छा रूल है, उतना करोगे सब कंप्लीट है फर्स्ट। लेकिन पहले प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। तो देखो यार, तुम किसी भी एक तो फर्स्ट चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, लाइक हाउ मेनी ईसी स्टूडेंट्स आर हियर, लाइक आई डोंट नो, लेकिन एक ईसी में एक बहुत ही यार वाली सोच होती है, यार हम ईसी वाले हैं, हम कोडिंग नहीं करेंगे। इवन फैकल्टीज यार यहाँ की ये सोचती हैं ट्रिपल आई टी भोपाल की कि यार ईसी वाले हैं कोड नहीं करते, ठीक है। तो यार एक ये इस चीज़ को ट्रेंड मत बनाओ, इस चीज़ को ट्रेंड बिल्कुल मत बनाओ, ठीक है। इवन आईआईटी में तुम जाओगे ना यार, तो इवन वहाँ पे मैकेनिकल बैठा है, सिविल बैठा हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन बैठा हुआ है, ठीक है, सब कोड कर रहे हैं, लाइन से कोड कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल मत सोचो यार कि कोड नहीं करना है, यार तुम किसी भी स्ट्रीम के हो, तुम अगर आए मतलब जॉब में आओगे ना तुम्हें कोड करना पड़ेगा, बिन कोडिंग कहीं कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब वो डिफर कर सकता है यार कि तुम कौन से स्ट्रीम के लिए कोड कर रहे हो। लाइक मैंने फर्स्ट आईटी में ट्राई कर रहा था, तो लाइक मैं कंप्यूटर कोडिंग इन सब चीज़ों में था। लाइक फिर जब मुझे कोर का पता चला कि यार बड़ी से बड़ी कंपनी में हम डायरेक्टली जा सकते हैं, लाइक इंटेल कॉलकॉम में काम करना, लाइक दे वोंट बी रिक्रूटिंग फ्रॉम नॉर्मल कॉलेज, मोस्टली आईआईटी से रिक्रूट करेंगे, टॉप आईआईटी से रिक्रूट करेंगे, उसमें कहीं नहीं जाती, कॉलकॉम इंटेल सब चीज़ें कहीं नहीं जाती। लेकिन इसमें एक टेक्निक है काम करने की, तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो दे प्ले अ मेन रोल। तो अगर मैं लाइक मैं ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस मैं अपना स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ, लाइक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, बस मेरे अंदर ये आग थी यार कि कुछ करना है, पैसे बहुत कमाने हैं, नौकरी अच्छी चाहिए, बस इतनी आग थी, और कुछ नहीं था, कुछ पता भी नहीं था। 13 किलोमीटर दूर रहते थे ना, तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। द थिंग इज यू नीड गाइडेंस, है ना, प्रोजेक्ट है, बहुत सारे सीनियर यहाँ पे जो तुम्हें गाइड कर सकते हैं। फाइंड योर सीनियर जिससे तुम कंफर्टेबल हो, बात कर सकते हो, जिससे रीच आउट कर सकते हो, और वो सीनियर सबसे बेस्ट है यार जिसके खुद का नेटवर्क हो, ठीक है। तो लाइक आई फाउंड हिम, लाइक जो मेरे सीनियर्स थे, लाइक 2 पर्सन मैं नाम लूँगा, लाइक आई शुड पे ग्रेटिट्यूड टू देम, इसलिए नाम ले रहा हूँ उनका है ना। एक यशवीर सर हैं, यशवीर सर, प्रवीण सर एंड नीलाभ आनंद सर, लाइक दे आर दी 3 पर्सन। आई फर्स्ट
met them after my first year. तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना यार प्रोजेक्ट में काम करने का? एक होता है ना यार कि प्रोजेक्ट तुम खुद करते हो, ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है, एंड इवन कंपनी में काम करने के बाद मैंने ये चीज़ सीखी। एक चीज़ होती है ना, तुम प्रोजेक्ट खुद करते हो ना, जितना तुम्हें नॉलेज होता है तुम उतना करते हो, अपने हिसाब से कुछ बनाते हो, डेवलप करते हो, शोकेस करते हो। बट उससे एक अच्छी अप्रोच है यार, गो टू सीनियर्स और तुम एक लेवल ऊपर का प्रोजेक्ट बनाओ। लाइक एग्जांपल देता हूँ, अभी इसमें यहाँ पे जितने भी हैं 80 अटेंडी, तो उसमें से कई सारे लोग सेकेंड ईयर में हो गए, है ना? जो फर्स्ट ईयर में हो गए, चलो ठीक है सेकेंड ईयर की बात करते हैं अभी, जो सेकेंड ईयर में हो गए, क्योंकि शुभंकर थर्ड ईयर में है, आयुष थर्ड ईयर में है, ठीक है? तो तुम यार इनको अप्रोच कर सकते हो। जो सारे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले हैं वो मुझको अप्रोच कर सकते हैं, और कोई सिमिलर काइंड ऑफ सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हो, और उनसे बात करो यार सर आपने तब क्या बनाया था और आप अभी क्या कर रहे हो, और क्या मैं आपके साथ प्रोजेक्ट मिलके कर सकता हूँ क्या? सो द बेस्ट थिंग इज दिस, अगर किसी से मिलके काम करोगे ना, तो देखो तुम्हें 2-3 बेनिफिट है। तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट, तुम्हें चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नहीं जो सीनियर सीख रहा है ना उस लेवल की चीज़ें सीखने को मिलेंगी, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। तुम्हें नई नई चीज़ें पता चलेंगी। अगर तुम अकेले काम कर रहे होते ना, तुम्हें पर्टिकुलर डोमेन में बना के खुश जाते हैं, हाँ यार मैंने डेवलप कर लिया, ठीक है? सो मेक प्रोजेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ योर सीनियर्स। अगर मौका मिले उनके साथ रह के, उनके साथ का, तो उनके साथ रह के प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है? बेस्ट फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है यार कि प्रोजेक्ट डेवलपर वाला काम ना, एक तो है कि तुम सीखने के लिए डेवलप करते हो, प्लस एक चीज़ है कि यार तुम लग के डेवलप करते हो ना, तुम सीख कुछ नहीं रहे होते, सिर्फ तुम्हारा फोकस डेवलपमेंट में रहता है। तो फर्स्ट 2 ईयर्स में ना तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि सिर्फ डेवलप कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, बिकॉज तुम्हारे सब्जेक्ट्स इवन सीएससी में भी लाइक कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, लाइक तुम लोग लिख सकते हो सारी चीज़ें, इसलिए डिस्कस हो रही है क्योंकि तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है? डीबीएमएस है, और अगर एक कोर की बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसको पढ़ते पढ़ते कोई प्रोजेक्ट बनाना, और थर्ड और फोर्थ ईयर में जब जब तुम लग के प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो ना, तो लग के प्रोजेक्ट करना कि यार हमें कोई मतलब नहीं है कॉलेज की पढ़ाई से, सारे सब्जेक्ट निकल चुके हैं, हमने कवर कर लिए हैं, और जो माइनर और मेजर प्रोजेक्ट है उसको बहुत लग के करना, बहुत लग के, क्योंकि माइनर मेजर प्रोजेक्ट है जो तुम्हें ऑफ कैंपस के लिए स्टैंड आउट करेगा, ठीक है? तुम्हारे इंटरव्यूज में सिर्फ ऑन माइनर और मेजर प्रोजेक्ट के सवाल होंगे, ठीक है? तो वो चीज़ ज़रूर करना। तो ये हो गया प्रोजेक्ट्स की बात। और रिवीजन की बात है, एक रिवीजन का रूल होता है 3-7-11। पता नहीं बहुतों ने सुना है नहीं सुना, 3-7-11। तुमने आज कोई चीज़ पढ़ी है ना, तो उसको हर तीसरे दिन में, और उसको हर 7वें दिन में, और हर 11वें दिन में बस ये 3 बार रिवाइज कर लोगे ना उस चीज़ को, यार वो पक्की हो जाएगी, वो नहीं भूलोगे कभी, ठीक है? तो 3-7-11 रूल फॉलो करो, एवरीथिंग विल बी एट बेस्ट। आज कोड कर रहे हो, मान लो तुमने कोड किया, ठीक है? लाइक बहुत सारी चीज़ होते हैं ना, बहुत सारे एल्गोरिज्म होते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, सबके निकल जाते हैं, बहुत नॉर्मल है, ठीक है? आज कोड करो, 3 दिन बाद एक बार देख लो यार मैंने क्या लॉजिक अप्लाई किया था। वही चीज़ एक वीकेंड के बाद देख लो, 7 दिन क्या देखो, 3 दिन मतलब कि यार एक दिन का गैप लेके देख लो, 7 मतलब वीकेंड में देख लो। जैसे तुमने पूरे हफ्ते कुछ काम किया, सैटरडे संडे को कुछ समय निकालो, सैटरडे संडे रिवाइज कर लो, 3-7 हो गया ना। और वही है कि हर 15 दिन के आसपास, 11 से 15 दिन में उसको रिवाइज कर लो, ठीक है? इतना कर लोगे ना, कभी नहीं भूलोगे यार उस चीज़ को, समझ गए? ऐसे ब्रेक करके पढ़ना है। तो ये रिवीजन की काफी बहुत शानदार सी पॉलिसी है और बहुत वर्ल्ड वाइड काफी रिनोन पॉलिसी है 3-7-11। तो और हाँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को माइनर और मेजर प्रोजेक्ट के बारे में और बता दूं। आपके 6th सेमेस्टर में आपका असेसमेंट का एक लाइक आपको क्रेडिट्स आपके माइनर प्रोजेक्ट पर भी मिलेंगे। तो देयर विल बी आपका 6th सेमेस्टर जो प्रोबेबली सेकेंड अभी जो हमारे इमीडिएट जूनियर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट ईयर जनवरी से शुरू होगा। सो इट विल बी लाइक आपको 4 मंथ्स मिलेंगे, आपको एक माइनर प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना होगा और उसके बेसिस पर आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, एंड दैट क्रेडिट्स विल आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन योर ग्रेड्स और वन कैन से इन योर रिजल्ट्स। और जैसा कि सर ने बता ही दिया, वो माइनर प्रोजेक्ट दैट विल सेट द वे आपकी समर इंटर्न्स या फिर आने वाले टाइम में आप कैसा शेप अप कर रहे हो। तो इसलिए माइनर प्रोजेक्ट बहुत बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए। अच्छा, अब सर मूविंग अहेड, आपके क्या पॉइंट्स रहते हैं कि लाइक व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नॉट डू, व्हाट थिंग्स शुड वी रिमेंबर, पर्टिकुलरली फोकसिंग अबाउट आवर कोर सब्जेक्ट्स, मतलब जो भी हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं और क्या थिंग्स टू रिमेंबर रहती हैं इन दिस होल जर्नी, पर्टिकुलरली 3rd ईयर एंड 4th ईयर के टाइम पर। देखो यार, एक 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 प्रैक्टिकल वो है मेरे पास, लाइक जैसे कुछ सब्जेक्ट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे अपने 3rd 4th ईयर, या मतलब पूरे जर्नी में 1st ईयर to 4th ईयर, और कुछ सब्जेक्ट्स ना यार मैंने बस जस्ट सो कॉल्ड पढ़े थे,
तो जो सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे पढ़े थे ना, बहुत अच्छे का इन द सेंस ना यार, जिसमें मैंने बहुत सवालों की प्रैक्टिस की थी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे ना यार, एट द लास्ट ऑफ द डे बस तुम्हें वही याद रहता है। अगर तुम सो कॉल्ड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना कोर, तो क्या होगा ना, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ सब्जेक्ट्स बहुत कठिन है, ठीक है। तुम सो कॉल्ड ऊपर से पढ़ लेते हो, उतने सवाल लगाते हैं कि सर ने जितने नोट्स दिए हैं उतने नोट्स कंप्लीट कर लो, दिस दिस हैपन, ठीक है। तो यार वो तब तक याद रहेंगे ना जब तक तुम अपना एंड सेमेस्टर लिखते हो। जैसे पेपर का फुल स्टॉप मारोगे ना, सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी। यही होता है प्रैक्टिकली, यही है। तो डू एंड डोंट्स में अगर सब्जेक्ट वाइज बात करो ना यार, तो तुम अपने सेमेस्टर चालू होने से पहले किसी भी इंसान से बात कर लेना जिसको नॉलेज है उस फील्ड का, कि सर इस सेमेस्टर कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हलवे की तरह निकाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे पढ़ते हो, है ना। लेकिन जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ना यार, उसको बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना इन द सेंस कि यार नोट्स वगैरह तो होने चाहिए कंप्लीट, बट उनकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना यार, वो ऐसी होनी चाहिए कि लाइक जो गेट की प्रिपरेशन करना है दिन, है ना, कि यार कैसे प्रैक्टिस करते हैं गेट की प्रिपरेशन में, लाइक सवाल लगाते हैं, मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो तुम्हारी प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए ना यार कि तुम्हें चीज़ें याद रहनी चाहिए। तुम जैसे अभी मेरा लास्ट अभी इंटरव्यू था, लाइक कॉलकम में इंटरव्यू था, तो लाइक मेरा वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन था, तुम्हारा अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताओ क्या है। तो मैंने 2 या 3 का लिस्ट आउट किया, तो उसने 2 से सवाल पूछे, तो फिर उसने मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में ना एक ऐसा गंदा सा क्वेश्चन पूछा कि मैं अटक गया, ठीक है। मतलब अटक गया इन द सेंस मैंने आधा जवाब दिया और आधा मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने वो चीज़ रियलाइज़ की ना यार, मुझे याद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने पढ़ी है ये चीज़, लेकिन मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की उतनी, ठीक है। और कोडिंग में भी यही होता है यार, तुम पढ़ लोगे कोड, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो 2 महीने बाद तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। सो डूज में यही है यार कि चीज़ें प्रैक्टिस करो, ठीक है। और एक चीज़ और कि जैसे हम, देखो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है यार, अपने सीनियर्स को अप्रोच करो, उनसे चीज़ें सीख लो यार, सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैं यार यहाँ पे आज 1 घंटा बोलूँगा, तुम सुनोगे भूल जाओगे। एक बंदा चाहिए हमें ना कॉन्स्टेंटली गाइड करने के लिए, अगर कोई सीनियर तुम्हें अप्रोच करा ना गाइड करने के लिए, वो बेस्ट है। जैसे लिनक्स वगैरह है ना यार, लिनक्स है, यूनिक्स है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसको अपने सेकेंड ईयर में सीख लो। मैंने मैंने अपने सेकेंड ईयर में ही डुअल बूट करके सिस्टम पे लिनक्स डाला था, लिनक्स पे काम करता था। तो उसको अलग से सीखने का वो नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने अपने सीनियर को देखा था वो लिनक्स पे काम करते हैं, तो मुझे पता था यार लिनक्स पे काम करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो डाल दिया डुअल बूट में, लिनक्स पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, डूज में डाल लो अपनी। डोंट में एक चीज़ कहूँगा यार कि ठीक है मज़े करना, मेरे हिसाब से सबका पर्सनल हो सकता है ओपिनियन, लेकिन मेरा एक ओपिनियन है यार कि ये जो दारू सुट्टा और ये जो अलग अलग चीज़ें होती है ना यार, इनके चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। कि दिखने में कूल लगती हैं, आपको दिखने में लगेगा कि यार वो वो क्या कहते हैं, वो लेडीज देख रही है मुझको, वो माता जी देख रही हैं मुझको, ठीक है। तो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट लास्ट लोग, तुम अपने कॉलेज के प्लेसमेंट से ही तुम अपने फैमिली की हेल्प कर पाओगे और तुम खुद की हेल्प कर पाओगे, ठीक है। तो 3 चीज़ों से बच के रहना, लाइक बच के इन द सेंस जिसको जो करना है करेगा ही, बट एक एडवाइस है, ठीक है। कि तो वो डोंट्स में रख सकते हो और डूज में तुम्हें लाइक बता दिया क्या करना है। हाँ मतलब जो भी लिसनर्स हैं उनके बता दूं कि कूलनेस जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। और यार इंजीनियरिंग फील्ड में है, कूलनेस तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन कूलनेस के जो तरीके होते हैं ना, वो हर बार जरूरी नहीं होते कि किसी पर्टिकुलर एक चीज पर ही बेस्ड हो। सो अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत बहुत डिफरेंट तरीके की कूलनेस है यार। तुम्हारे कॉलेज में इतने इवेंट्स होंगे, मतलब तुम कूल अपने ही कॉलेज के एक क्रिकेट मैच में छक्का लगाकर भी बन सकते हो। वो फुटबॉल की टीम में रहकर भी, मतलब जरूरी नहीं है कबीर सिंह ही बनो, बट फुटबॉल टीम में रहकर भी गोलकीपिंग पे पेनल्टी शूटआउट में एक गोल बचा लिया ना, आने वाले सेमेस्टर के लिए तुम कूल बन जाओगे। बहुत सारी चीजें हैं कूलनेस शो करने के लिए। तो ये चीज थोड़ा सा ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं आपको आपके गोल से। वंस अगेन जैसा सर ने कहा, हर किसी की पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकती है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना तुम सब। अब सर एक काफी इम्पोर्टेंट सा सवाल है, जैसे जब थोड़ी थोड़ी रिजेक्शंस मिलती हैं या फिर कभी ऐसा रहता है कि यार इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, या फिर क्लास में परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं आ पा रही, या फिर बहुत बार मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि आपने रिक्वेस्ट भेजी, कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई, या फिर मेल भेजा, मेल का रिप्लाई नहीं आया। तो उस टाइम पे बहुत बार बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फीलिंग आती है कि यार हम काफी 3-4 महीनों से ट्राई कर रहे हैं या कुछ हो नहीं रहा। तो उस टाइम पे कैसे मॉरली, मतलब एक बूस्ट रखें खुद के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आयुष। लाइक मुझे अपने एक्सपीरियंस से याद आ गया कि यार मैं कितना फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ।
सो देखो दो चीजें हैं, एक तो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन ना मैं अभी सेट कर देता हूँ, जितने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यहाँ प्रेजेंट होना, लाइक आई जस्ट नाउ आई सेट द एक्सपेक्टेशन। तुम मेल करोगे ना, मेल का रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है? तुम लिंक्डइन की रिक्वेस्ट भेजोगे ना यार, स्टार्टिंग में बाद में एक्सेप्ट होगी, स्टार्टिंग में यार नो वन विल एक्सेप्ट, ठीक है? तुम बस भेजते जाओगे, लिमिट आ जाएगी एक, अगर तुम प्रीमियम यूज नहीं करते तो, ठीक है? तो ये चीजें होंगी, इससे डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है? लाइक अगर सच में अगर मैंने जब ऑफ कैंपस की मेल करना चालू किया था ना, मानोगे नहीं यार, कम से कम दिन में 50-50 60-60 मेल पर डे भेजा करता था। तो जाके 2 महीने बाद एक मेल का रिप्लाई आ रहा है कि सॉरी वी डोंट रिक्रूट फ्रॉम योर कॉलेज ऐसे ऐसे मेल आते थे, ठीक है? तो ऐसा ही होगा। तो ये यार एक्सपेक्ट, तुम्हें पता होना चाहिए, सच्चाई पता होनी चाहिए, एक एक्सपेक्टेशन होती है, सच्चाई होती है। तो जो आयुष ने बोला ना यार, एकदम सच्चाई है कि यार मेल के जवाब नहीं आएंगे, लिंक्डइन की रिक्वेस्ट कंप्लीट, तुम इवन जो बात करोगे ना, तो यार कुछ कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं लिंक्डइन में मिल जाते हैं, दे हेल्प अ लॉट। तो वो तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा है तुम्हें अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा यार कि यार लोग हेल्प नहीं करते या फिर बस घुमा देते हैं तुम्हें, ठीक है? तो इसमें एक मेरा पर्सनल तरीका है, लाइक आई वुड सजेस्ट, लाइक इफ यू आर समथिंग इनटू मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, इफ यू आर इनटू समथिंग मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, सो दैट वुड बी बेस्ट, है ना? क्योंकि यार तुम फ्रस्ट्रेट हो गए यार, आज नहीं तो कल फ्रस्ट्रेट हो। लाइक थर्ड ईयर में तुम्हारी इंटर नहीं लगेगी ना यार, तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें पॉइंट बताता हूँ तुम कहाँ कहाँ फ्रस्ट्रेट हो गए। तुम्हारी थर्ड ईयर में आके तुम्हारी इंटर नहीं लगेगी, तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, ठीक है? तुम्हारा फोर्थ ईयर का प्लेसमेंट चालू हो जाएगा, और जो फर्स्ट कंपनी आएगी, रिजेक्ट हो जाओगे ना पहली कंपनी से, तुम्हें वहाँ फ्रस्ट्रेशन आएगी, साला मैं कंपनी नहीं फोड़ पाया, है ना? 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, पहली कंपनी नहीं फोड़ी, छोटी सी हलुआ सी कंपनी थी, ठीक है? मुझे टीसीएस ने रिजेक्ट कर दिया था, जस्ट बिकॉज उनकी गलती थी, ठीक है? उनकी गलती थी, उनके इंटरव्यूज थे, तो मुझे मगर टीसीएस में नहीं हुआ यार, मतलब टीसीएस में नहीं हुआ, ये चीज होती है, ठीक है? तो वहाँ फ्रस्ट्रेट हो गए तुम। और एक फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट होता है यार कि तुम्हारे दोस्तों का प्लेसमेंट हो जाएगा, और तुम्हारे दोस्तों का प्लेसमेंट हो रहा है, तुम्हारे एग्जाम्स नहीं क्रैक हो रहे हैं, तुम्हारे इंटरव्यू राउंड नहीं निकल रहे हैं, तो वो मोस्ट है, मोस्ट मतलब उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट तुम कहीं होगे नहीं। तो तुम्हारे पास देखो लोग होने चाहिए बात करने के लिए, सबसे बेस्ट है ना यार ऐसे लोग, ऐसे सीनियर, देखो जूनियर जूनियर से तो क्या ही बात करोगे यार, तुम्हारे जूनियर्स हैं, ठीक है? और जो साथ वाले हैं, तो यार उनसे बात नहीं करते बनता, क्योंकि देखो अभी सब साथ साथ लगता है, जब फोर्थ ईयर में आते हो ना तैयारी करने के लिए, तो कुछ साथ साथ नहीं होता, तो बस होता है कि यार मैं अपना देख रहा हूँ, वो अपना देख रहा है, तो तुम इक्वल से बातें नहीं कर पाओगे, ये सच्चाई है यार, मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है ना, इन जनरल है ये, ऐसा कोई बहुत वाली चीज़ नहीं है। और तो सबसे बेस्ट है यार कि ऐसे सीनियर्स से ढूंढो यार जिससे तुम अपना हार्ट शेयर कर पाओ, ठीक है? और द बेस्ट चीज़ है एक मेडिटेशन है, अगर मेडिटेशन है स्पिरिचुअलिटी में हो, सो प्रैक्टिस दैट एट दैट टाइम, लाइक डू यू नो योर सीनियर ब्रिजेश सिंह सर, ब्रिजेश सिंह, वो भी एसएससी देने गए थे, है ना? तो लाइक मैं उससे भी कल ही रात को बात कर रहा था, तो वो बोला यार कि पता है मैं वहाँ पे इतना फ्रस्ट्रेट था, इतना परेशान हो रहा था, like he had some technique of like meditation, like some of the students might know, like I am in touch with, like I have told them already. तो उसने बोला कि यार मैंने ये चीज़ रियलाइज नहीं की, लेकिन तेरी बात ना मैंने वहाँ पे जाके मानी, और मैं वहाँ पे ऐसा मेडिटेट करके एसएससी देने गया, लाइक एवरी डे मॉर्निंग आई यूज्ड टू डू इट, और वो 7 दिन मेरे जो निकले ना यार बहुत पीसफुल थे। अगर मैं वो चीज़ नहीं करता ना, तो क्या कहते हैं कि लाइक माइंड में एग्रेशन रहता है, तो वो चीज़ तुम्हारे लोग के साथ भी होगी एक आने वाले समय में। So if you are into meditation and spirituality, that will save you, and talk to someone like who can help you, जो तुम्हारी बातें सुनने समझे और तुम्हारी हेल्प करे, ठीक है? तो बस ये चीज़ है, तो ये फ्रस्ट्रेशन से बच जाओगे, और अपनी जो बार है ना वो तुम्हें पता होना चाहिए यार कि ऐसा तो होगा ही होगा। ये सर ने बहुत शानदार पॉइंट बताया कि अगर आप मेडिटेशन के अंदर हो ना, तो सच में बहुत बार चीजें जो अनटैकल्ड चीजें लगती है ना कि यार ये क्या आ गया यार, मतलब अब क्या होगा, कैसे होगा, उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। और मतलब जो लोग ऐसे यूट्यूब तुम अगर ज्यादा देखते हो और जाकिर खान को थोड़ा सुना है, तो उसने एक कविता लिखी है, मैं शून्य पे सवार हूँ। मतलब आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुनी होगी, बट बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है यार। लाइक आप जब तक कहीं अप्रोच या फिर अचीव नहीं कर लेते ना, तब तक यू आर एट जीरो, तब तक तुम शून्य पर सवार हो। तो काफी सारे ऐसे यूट्यूब पर भी बहुत मोटिवेशन मिल जाएंगे। और उसने भी कहा है यार, बड़े लोगों के साथ होता है ये सब, स्ट्रगल्स हैं, बहुत रेगुलर स्ट्रगल्स हैं, ये बड़े लोगों के साथ सब होती हैं। तो अगर कभी लगे कि यार इतनी सारी स्ट्रगल्स, तो एक कंक्लूजन पर आओ कि यार बड़े लोग हैं अपन, अपने साथ ये होगा ही होगा। तो और फिर एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि थोड़ा साइंस लगाकर देखो कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है ना, उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू रहती है। सो
उस टाइम पर तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन पर ही हो। तुम्हें शायद जब वो स्टैटिक फ्रिक्शन था तब इतना काम नहीं आया, जब नॉर्मल फ्रिक्शन था तब इससे कम फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन है यार, अभी फ्रिक्शन ज्यादा होगा ही होगा। तो बस इस चीज को सोचो और आगे मूव ऑन कर जाओ। तो अब थोड़ा एक्चुअली शायद डिस्कशन थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, मैं भी थोड़ा बह गया अपनी भावना में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस पर है कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। कि लाइक कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है इंटरव्यूज के कि इन जनरल बताऊं? हाँ सर, लाइक पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपको, मेरे को पूरी उम्मीद है सर आपको बहुत वेट करना पड़ा होगा। आप आपकी जो सिनॉप्सिस की इंटर्न लगी और उसके बाद फिर आपने क्वालकॉम में कैसे अप्लाई किया सर, वो एक बार पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका पूरा लाइक पूरा जॉब एक्सपीरियंस सर अभी तक का। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ना, शुरू से बताता हूँ। तो लाइक फर्स्ट ईयर इस जर्नी ना यार, एक्चुअली इंटरव्यू एक्सपीरियंस की और कंपनी में काम करने का जो है ना, वो फर्स्ट ईयर से डेवलप हुआ। लाइक मैंने बताया ना पहले कि हम कॉलेज में आए थे, और जिस वक्त मैंने कॉलेज का हॉस्टल देखा था ना, बस दिमाग में एक ही चीज़ थी यार कि ये लोग कुछ नहीं दें चलेगा, बस नौकरी देते हैं, ठीक है। तो वो दौड़ ना दिमाग में कहीं ना कहीं थी यार फर्स्ट ईयर से। तो उस वक्त लाइक आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत सारे IITs वगैरह इवेंट्स कराते हैं और बहुत सारे नेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो जैसे कोडाथॉन वगैरह है ही है, लेकिन एक फिजिकल इवेंट होता है। सो वी वर इनटू दैट। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जोनल्स क्रैक किया था मैंने टेक स्फूर्ति का, IIT कानपुर जाने के लिए, ठीक है। तो मैं रीजनल में सेलेक्ट हुआ, फिर जोनल में। एक टीम थी पूरी हमारी, है ना, उसमें मैं था, कई सारे लोग और थे। तो तो फर्स्ट चीज़ है कि वो IIT कानपुर पहुँचे। चीज़ हम मैं था, एक मेरी टीम थी, एक नयन की टीम थी। तो लाइक बहुत मज़े किए थे IIT कानपुर जाके। तो एक चीज़ थी, तो एक वहाँ पे ना इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो बहुत करने को मिला, क्योंकि यार तुम कैसे सेलेक्ट होते हो, जाना कैसे है, क्या काम करते हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह। मतलब हम रीजन तक पहुँचे थे, तो हम कुछ जीते भी थे। एक की रैंक 9 थी, एक की 32 थी, एक तो वहाँ स्टार्ट होती है। तो फिर उसके एक्सपीरियंस से ना यार, जो IIT कानपुर के ट्रिप के और IIT कानपुर के उसके एक्सपीरियंस से ना, मैंने अपने सेकंड ईयर में एक रोबोटिक्स कंपनी में काम किया था। मैं जनरली मेंशन नहीं करता उस चीज़ को, क्योंकि मतलब वैसा बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग जानते नहीं है। लेकिन रोबोटिक्स देखो, क्रेज़ है आजकल का यार, ठीक है। मुझे बहुत क्रेज़ था सेकंड ईयर में अपने रोबोटिक्स में काम करने का। और रोबोटिक्स इंडिया में एकदम नया है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तुम अपने IML, ओपन सी सब कुछ, कंप्यूटर विजन, बहुत सारी चीज़ें शोकेस कर सकते हो। तो मैंने सेकेंड ईयर में एक रोबोटिक्स कंपनी में काम किया था। सो दे वर पेइंग मी अराउंड 8,000 रुपीज़। तो वहाँ का इंटरव्यू प्रोसेस ऐसा था, 8,000 पर मंथ पे कर रहे थे, ऐसा बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन ठीक है, अपने सेकेंड ईयर के हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका इंटरव्यू ऐसा था यार कि देखो, तुम जो अपने फर्स्ट ईयर में देखो, इंटरव्यू यार वो तुमसे वो पूछता है ना यार, जो तुमने अभी तक किया होता है। एक तो वो है कि तुम अपनी प्रोफाइल बहुत अपनी इंप्रेसिव बनाओ, इंप्रेसिव इन द सेंस झूठ नहीं बोलना है प्रोफाइल में। ऐसा नहीं कि यार आता कुछ है नहीं, गाँव के लिख दिया कुछ भी, और इंटरव्यू में बैठे उसने पूछ लिया। देखो इंटरव्यू की तुम्हें देखो, मेन चीज़ यार इंटरव्यू क्रैक करना बहुत आसान है, मतलब ये हमने ऐसा फिगर आउट किया है, मतलब इतने इंटरव्यूज के बाद तुम्हें इंटरव्यूअर की साइकोलॉजी से खेलना है, बस कुछ नहीं करना है। तुम सामने बैठे हो यार, 2-4 रिएक्शन मिलेंगे, तुम्हें बस ये सोचना है यार वो बंदा क्या सुनना चाहता है मेरे से। अगर तुमने ये फिगर आउट कर लिया ना कि वो बंदा क्या सुनना चाहता है, तुम्हारे पास टेक्निकल स्ट्रेंथ कम होगी। देखो बहुत सारे, देखो मैं अभी के सिनॉप्सिस में काम कर रहा था, तो मेरी मैनेजर्स हैं, एक्चुअली मैनेजर बहुत हाई पोस्ट होती है ना, अगर तुम टेक्निकल डोमेन में आते हो। तो मेरी उनसे बात होती थी, तो अगर उनसे बात करके ना यार ऐसी चीज़ें पता चली ना यार, कि कभी कभी ऐसा होता है ना यार कि वो टेक्निकल बंदा नहीं ढूंढते, सच्ची में। अगर तुम्हें टेक्निकल चीज़ें कम भी आती है ना, वो चलेगा इंटरव्यू क्रैक करने में। वो क्या ढूंढते हैं ना यार, कि तुम इंसान कैसे हो, तुमने अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में कितनी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, और तुम्हारा अप्रोच कैसा है। बस वो सिर्फ इतना ही चेक करते हैं। बताओ, उसने सामने से मेरे से बोला कि यार तुम्हें चीज़ें आदत नहीं भी आती होंगी ना, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, 6 महीने की ट्रेनिंग में कंपनी में आओगे तो। लेकिन हमें ऐसा बंदा चाहिए ना जिसने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हों, वो जल्दी परेशान नहीं होता हो, और लाइक उसके अप्रोच बस चेक करता है, वो अप्रोच क्या है तुम्हारी, कितने जुगाड़ू हो तुम, बस वो इतना ही चेक करता है वो। कि सही बात है यार, हमने चलो कॉलेज में नहीं सीखा, कोई बात है, टेक्निकल स्ट्रेंथ कम है, वो तुम्हें वहाँ पे जाके सिखा देगा, ठीक है। तो इंटरव्यूअर में लाइक इंटरव्यू की जो वो है ना, वो क्या तुमसे सुनना चाहता है, उस चीज़ को गेस करने का कोशिश करो, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में ऐसा हुआ कि एक रोबोटिक्स कंपनी में इंटर्न की थी, तो वो चीज़ रहती है। फिर थर्ड ईयर में आए, तो थर्ड ईयर में एक्चुअली क्या है कि हमारे कॉलेज में TNP नहीं था। जब हम थर्ड ईयर में आ गए तब तक TNP ऑफिस था ही नहीं थर्ड ईयर में, ठीक है। तो हम ही लोग ने आपस में कुछ मिलके सेटअप वेटअप किया, कुछ चल रहा था यही सब। तो लाइक आई टेल यू द ट्रूथ, है ना, कि देखो NIT भोपाल के एक सीनियर है नीलाभ आनंद सर और प्रवीण सर, ठीक है।
सो एट दैट टाइम मैनेट में भी ऐसा हुआ था कि कोरोना चालू हो गया था, और हुआ ये था कि जितनी भी कंपनीज में काम चल रहे थे उन्होंने ले ऑफ कर दिया था सब। तो लाइक मैनी सीनियर्स फ्रॉम एनआईटी भोपाल आल्सो लाइक वर अ पार्ट ऑफ दैट ले ऑफ। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ऑफ कैंपस की तैयारी चालू की एंड आई वाज कनेक्टेड टू देम। तो मैंने उनसे पूछा सर ऑफ कैंपस कैसे कैसे करना है, क्या करूं, मेरे आपका सिचुएशन ये है कि आपको ले ऑफ कर दिया है, मेरी सिचुएशन ये है कि मेरा टीएनपी नहीं है। तो हमें एम एक ही था कि ऑफ कैंपस ड्राइव क्रैक करनी है। तो उनसे गाइडेंस लिया, तो उन्होंने यार कुछ सारी टिप्स दी हैं, तो उसमें से एक दो टिप्स मैं शेयर करूंगा आप लोग से। सबसे पहले देखो, एक होता है ना यार कि हम धीमे धीमे चीज़ें करते हैं, लाइक कोड कर रहे हो या कोई नई स्किल सीख रहे हो, ठीक है, उस स्किल को सीख, जितना जल्दी सीख सको ना यार, 1 महीना 2 महीना, ठीक है, सीखो और हैव सम प्रोजेक्ट ऑन दैट, ठीक है। इंटरव्यूअर तुमसे सिर्फ फ्रेशर से 2 चीज़ें पूछेगा, ठीक है, ये अपने एक्सपीरियंस में तो नोट डाउन कर लो यार, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना यार जिससे इंटरव्यू क्रैक होते हैं, होते ही है। इंटरव्यूअर सिर्फ तुमसे 2 चीज़ पूछेगा, एक तुम्हारे सब्जेक्ट की नॉलेज, दूसरे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स। अगर तुम इनमें से हल्का सा भी लैक किए ना यार, वो तुम्हें ऐसा ऐसा बाहर करेगा, कुछ कहने को नहीं, ठीक है। तो तुम्हारी जो सीवी होनी चाहिए ना यार, बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी। अगर ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करो, ऑन कैंपस में तो क्या यार, हलवा होती है सीवी, कॉलेज वाला जो फॉर्मेट देते हैं वही बना देते हैं, चल जाता है काम, ठीक है। उसमें तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती, वो टीएनपी सेल के जो मेंबर्स हैं उनकी टेंशन है कैसा फॉर्मेट चूज करना है, कैसी बनवानी है सीवी। बट द थिंग इज, अगर ऑफ कैंपस बैठ रहे हो या फिर खुद सीवी बना रहे हो ना, तो योर सीवी शुड बी वेरी प्रॉपर। कोई चीज़ लाइक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। ट्राई करना अपने CGPA 7.5 से ऊपर रखो, तो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट्स और अपने प्रोजेक्ट्स की नॉलेज रखना यार, ठीक है। और पूरे इंटरव्यू में बस ये ध्यान रखना यार, ठीक है, मुझे टेक्निकल कम आता होगा, ऐसा होगा, तुम पूरी टेक्निकल नहीं कवर कर पाओगे। बस इंटरव्यूअर की अप्रोच ध्यान रखना। सबसे बेस्ट है गूगल गूगल मारना, गीक फॉर गीक्स में जाना, कुछ पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़े होंगे, ग्लास डोर पे जाना, पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ना, और तुम माइंड सेटअप कर लेना यार, ये कंपनी कहाँ कहाँ से पूछती है, ठीक है। तो वो कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें, सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और मैंने और भी तरीके यूज किए थे, लाइक ये मेरा पर्सनल था। मैं खाली बैठता था ना, जैसे दिशा ने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला था, लाइक वो मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है। जितना अपन इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करते हैं ना यार, उतना लिंक्डइन स्क्रॉल कर लोगे ना यार, जिंदगी सेट हो जानी है। मैं बस बैठ के लिंक्डइन स्क्रॉल करता था, मैंने कहा यार मुझे इस कंपनी में काम करना है, बस मैं उस कंपनी के पेज ही पढ़े जा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है, बस उस कंपनी के पेज पढ़े जा रहा हूँ। तो उसमें फायदा क्या होता है? जैसे मान लो तुम इंटेल में काम करना चाहते हो ना, इंटेल वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, तो तुम पेज पढ़ रहे हो ना, इंटरव्यूअर ने, अब देखो इंटरव्यू तुम ड्राइव करते हो अपना, ठीक है। तुम अपने सीवी में जो पॉइंट्स लिखोगे ना यार, इंटरव्यूअर तुमसे वही पूछेगा, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ पूछ सकता है, लेकिन मेन चीज वही पूछेगा। तो तुम ऐसा जवाब फ्रेम करो ना यार कि वो उसके ऐसा, मतलब मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, तुम ऐसा जवाब फ्रेम करो कि कुछ स्ट्राइकिंग वर्ड उसके दिमाग में अटक जाए। देखो ये साइकोलॉजी है, ठीक है, तुम ऐसे खेलो कि तुम्हारे इंटरव्यू सारे क्रैक हैं, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। ऐसे आंसर फ्रेम करो जो तुम्हें आते हो, और ऐसे कुछ वर्ड्स होने चाहिए उस आंसर में जिसमें इंटरव्यूअर आके अटक जाए कि यार ये क्या बोल दिया इसने, इसको आता है क्या, बस यार ये चीज है। फिर वो तुमसे उसी वर्ड पे सवाल पूछेगा, ऐसा होता है। मैं बता रहा हूँ, मेरे कॉलका में भी हुआ है। लाइक आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी, आई एम इनटू मेडिटेशन। तो यार ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कॉर्पोरेट लाइफ में। कॉर्पोरेट लाइफ वाले पता है क्या होते हैं, मतलब एकदम फुद्दू होते हैं। मतलब ऐसा होता है ना यार, क्या कहते हैं कि वो खूब मेहनत कर रहे हैं ना, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कंपनी लीव कर देते हैं। मैनेजर्स बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। मैनेजर्स कैसे बनना चाहिए ना यार, जो अपने आप को शांत रख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो। तो मैंने सिनॉप्सिस का फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, लाइक वो इंटरव्यू 2.5 घंटे का था। तो उन्होंने टेक्निकल वगैरह पूछा, लेकिन मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। उन्होंने मेरे से स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के बारे में ना यार 25 मिनट डिस्कस किया, और फिर मैंने उनको आंसर भी ऐसे ऐसे दिए ना यार कि उनको लगा कि यार ये बंदे में कुछ तो है यार, इसको टेक्निकल आता है। और फिर मतलब ऐसे घुमा फिरा के आंसर दिए मैंने उसको, मतलब कैसे वर्ड यूज किए जिसमें वो चीज़ वही चीज़ पूछे। तो उसने सिर्फ वही वही चीज़ें, उनके पास इंटरव्यू लेने का 1.5 घंटा है, तुम 1.5 घंटे में उसको जितना एंगेज कर लोगे वो तुमसे इंप्रेस है। तो मैंने सिनॉप्सिस में ऐसे इंप्रेस किया, कॉलकम में कुछ सिनॉप्सिस का बताया और ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए अपने आंसर्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में। तो उसने मुझसे वही चीज़ पूछी, अच्छा इसमें काम किया है? मैंने बोला हाँ सर किया है। किया मैंने, घंटा का नहीं था, हमारे कॉलेज में लैब भी नहीं है, ठीक है। और जैसे सिनॉप्सिस VCS एक सॉफ्टवेयर है, तुम्हें मिलेगा ही नहीं, ठीक है, वो पेड है और लाखों में आता है। तो मैंने कंपनी में काम किया था सिनॉप्सिस में इंटर्न। उसने कॉलकम में पूछा, मैंने कहा सर मैंने अपने कॉलेज में काम किया है, और एक्चुअली वो लीडरशिप ढूंढते हैं। तो मैंने बोला सर कि मैं जो भगवद गीता सेशन वगैरह दिया करता था, डिवाइस सेशन दिया करता था। तो उन्होंने पता है उस चीज़ में मुझसे 5-10 मिनट बातें करना चालू कर दिया। तो यार तुम ड्राइव करते हो अपना इंटरव्यू, ठीक है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखोगे ना, इंटरव्यू क्रैक हो जाएंगे। टेक्निकल चीज़ तो है, टेक्निकल एस्पेक्ट तुम्हें आना चाहिए, नहीं कह रहा टेक्निकल मत पढ़ो, यही करते रहो। लेकिन टेक्निकल के साथ ये अगर ये करोगे ना, टेक्निकल के साथ ये करोगे,
तो यार बेस्ट हो तुम क्रैक कर लोगे इंटरव्यू कोई सा भी। इनिशियली में तुम्हें वो मिलेगा रिजेक्शन, आखिरी में सीख जाओगे। तो ये अगर अप्रोच है तो इट्स गुड। यस सर, होप ये दिस आंसर। काफी आपने सर यस सर, प्लीज स्पीक सर। कॉलकॉम की थोड़ी सी कहानी जरूर सुनाइए। कॉलकम की कहानी हाँ इंटरव्यू की? अरे यार कॉलकम का इंटरव्यू, अच्छा देखो मैं ऐसा क्या है, तुम्हें पर्सनली बात कर रहा हूँ तुम लोगों से, ऐसा मत सोचना कि यार सर आए हैं और ऐसे बहुत प्रोफेशनली बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, खुल के बोलता हूँ। ठीक है, साफ बात, जो देखो सच्चाई है यार, मैं स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन था, मैंने बोला। ठीक है, ऐसा नहीं छिपाने वाली कोई बात नहीं है। और बेस्ट है यार, तुम लोग भी रहो, मैं तो खुद ही इन्वाइट करता हूँ, सब लोग रहो, बेस्ट है, फायदा मिलता है। कॉलकम में यार बहुत दिक्कत हुई। लाइक मेरे एक सीनियर से, वही नीलाभ सर, नीलाभ आनंद सर, वो एक्चुअली इस वक्त टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं। तो मैंने कॉलकम के लिए उनसे गाइडेंस ली थी, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो मैं कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहा था। अब सुनो क्या होता है, तुमने माइनर प्रोजेक्ट बनाया है, तुमने मेजर प्रोजेक्ट बनाया है। मैं कुछ फैकल्टीज के नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो ऐसी फैकल्टीज है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने कॉलेज के 8 सेमेस्टर में हूँ, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ सिनॉप्सिस में, दिन के 12-12 घंटे मेरे इंटर्न करने में जा रहे हैं, कॉलेज की क्लास कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट डेवलप किया। ठीक है, जब कॉलेज में जब तुम प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, पता है उस बंदे ने मेरे से क्या सवाल पूछा, कि तुमने इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या नया किया है जो अभी तक दुनिया में डेवलप ही नहीं हुआ। कैसा पागलों वाला सवाल है भाई, अगर ऐसा मैं कर लूंगा तो मैं साइंटिस्ट नहीं हो गया। मतलब उसको ऐसा कुछ चाहिए नहीं था कि तुमने कुछ इंप्लीमेंट किया, उसको चाहिए कि तुम यार कॉलेज के फ्रेशर हो, तुम ऐसा कुछ नया ढूंढ लो। तो हमारे कॉलेज की जो फैकल्टी है ना यार, तुम उसका लेवल समझ गए होगे। ठीक है, और एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे कॉलेज की फैकल्टी, एक बार क्या हुआ कि हमने ड्राइव रखी एक कंपनी की। तो वो कंपनी आईओटी के बारे में बता रही थी, यार आईओटी में ऐसा ऐसा होता है। तो एक अपने कॉलेज की एक सीनियर फैकल्टी है, तो तो जो कंपनी आई उसने फैकल्टी से पूछ लिया, सर कुछ आईओटी डिवाइसेस के नाम बताओ। ठीक है, तो फैकल्टी ने पता क्या बोला, कि रिमोट इज एन आईओटी डिवाइस। बोले भाई साहब, ठीक है, और ये बंदे बैठ के तुम्हारा माइनर और मेजर प्रोजेक्ट जज कर रहे होते हैं वहां पे। मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि यार इनके चक्करों में मत पड़ना। इनके लेवल से कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सीनियर से बात करो, एक अच्छे लेवल का कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाओ और उसको शोकेस करो। तो मेरे कॉलकम यही हुआ था, मैंने नीलाभ सर से बात की, उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाए थे मैंने उसमें थोड़ा गाइडेंस वगैरह लिया, प्रोजेक्ट बनाए। और देखो कॉलकम अगर देखो किसी बड़ी कंपनी में है ना यार, वो तुम्हें हर एंगल में ठोक पीट के चेक करेंगी, ऐसा नहीं सिर्फ टेक्निकल चेक करेंगी। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे कॉलकम में इंटरव्यू अगर कंबाइंड कर लो, मेरे 5 राउंड हुए हैं कॉलकम में, 5 राउंड क्लियर किए हैं। और तो अगर 5 राउंड कंबाइंड कर लोगे ना तो 10.5 घंटे के इंटरव्यू होते हैं, 10.5 घंटे, समझ रहे हो? तुम रो दोगे, ऐसे वाले इंटरव्यू होते हैं। वो तुम्हें एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेटा एबीसीडी लिखो, वो वहां से स्टार्ट करेंगे, और वो तुम्हारे हर चीज चेक कर लेंगे, हर चीज। वो तुम्हारा टेक्निकल पार्ट चेक कर लेंगे, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल चेक कर लेंगे, तुम्हारी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारा अप्रोच चेक कर लेंगे। और द थिंग इज, जो मैंने मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की बताई ना यार, कि कहाँ बेनिफिट है यार, वो वहाँ बेनिफिट है। वो तुम कितने जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हो, तुम क्या तरीके अपनाते हो। तो मैंने भगवत गीता में बहुत सारे तरीके सीखे हैं, मैं चिपका देता हूँ ऐसे स्टेटमेंट, तो खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो एक वो चीज़ वो तुम्हें अपनाएंगे, तुम्हारी एनालिटिकल स्किल वगैरह चेक करेंगे वो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के लगभग तुम्हारा एक रिलेशन हो जाता है इंटरव्यूअर से, तुम्हें 10-10.5 घंटे इंटरव्यू चलते हैं, तुम्हारा रिश्ता बन जाएगा उससे। तो तुम उस रिश्ते को जितना भरोसा दिला दोगे ना उसको, वो तुम्हें सेलेक्ट कर लेगा। इतनी चीज़ है। लाइक अब मैं थोड़ा एक्सपर्ट हो गया हूँ करने में। लाइक इवन मेरे लास्ट के 2 इंटरव्यूज में ना, वो मैं उनसे इतना अच्छा बात करता हूँ ना, मतलब ऐसे ऐसे टिप्स, मेडिटेशन, भगवत गीता और अपने टेक्निकल में, वो मतलब अच्छा मेरा बेटा भी ऐसा करता है, और वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। मेरा बेटा, अच्छा मेरी वाइफ भी यहाँ से पढ़ी हुई है, अच्छा ऐसा मैंने सुना, वो समझ रहे, वो बेटा लेवल वाइफ तक पहुंच जाते हैं। तुम समझ लो, अगर वो वहां तक पहुंच गया ना, तुमने अगर वो स्टैब्लिश कर लिया ना, मतलब तुम्हारे चांसेस डन है। तो वो चीज़ है, ये मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा। हाँ सर, मतलब ये तो आपने सर लास्ट के जो 10 मिनट में बात करी है ना, सब फील कर लिया हम लोगों ने। और जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कही कि जो ऑन कैंपस जो भी रिक्रूटमेंट्स आएंगे वो पहले से कन्विंस होकर आते हैं, बट जब ऑफ कैंपस रहता है तो वो स्टार्टिंग से कन्विंस होना शुरू होते हैं। तो इस वजह से मतलब कन्विंस करने के लिए तो यार एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ही पड़ते हैं ना। जब आपका ऑफ कैंपस कोई भी चीज है तो उसको कन्विंस करने में कितना भी टाइम लगाए, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि आपको उसे कन्विंस करना है। और यही सबसे बड़ी बात सर ने बताई कि जो रिज्यूम है वो आपका फर्स्ट फेस हो जाएगा। तो रिज्यूम्स ऐसा होना चाहिए जो एक बार को मतलब उसको वो पहली नजर में उठा के रख नहीं सकता, उसको कहीं और देखना तो पड़ेगा उसको। तो काफी अच्छा सेशन था सर, मतलब आपने इतना काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से गाइड किया और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात बताई।
और आई एम श्योर जो भी लिसनर्स हैं उन्हें मजा भी काफी आया होगा और काफी मतलब ज्यादा प्रभावित हो गए होंगे सर अब वो। और ये है सर इसी के अंदर, मतलब मैं थोड़ा पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी है। और CSIT के अंदर ये सारी चीजें बहुत अभी रिजॉल्व होना शुरू हो चुकी हैं। बस इसी के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप क्लैरिटी रखो कि हाँ आपके 4 में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एंड यू विल गेट अ गुड स्पेस। सो मूविंग Thanks. अहेड अब थैंक्स सर। इसमें एक पॉइंट और ना, यस सर, तुमने यस सर। एक पॉइंट बोला ना इसी की क्लियरिटी के लिए, तो यार पता ये चीज़ मैंने फील की कि यार देखो हमारे कॉलेज की फैकल्टी भी गाइड नहीं करते, उनको खुद नहीं पता है, उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है, वो गाइड क्या करें उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। तुम्हारे कॉलेज के तुम्हारे सेम लेवल के स्टूडेंट हैं यार, उनको भी इतना नहीं पता होता। जूनियर्स तो क्या ही पूछोगे जूनियर से, ठीक है, क्योंकि यार मतलब उन्हें पता हो सकता है लेकिन जूनियर से कैसे पूछोगे तुम, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही जूनियर्स हैं, उन्होंने वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े। तो बचते हैं तुम्हारे पास सीनियर्स। तो यार एक चीज़ ना यार ध्यान रखना, इसीलिए क्योंकि देखो मैं अभी कॉलकम में आ गया हूँ, मैं अपने कॉलेज के लिए करना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए देखो मैं पास आउट हो गया हूँ, फिर भी लाइक यहाँ पे 63 स्टूडेंट्स हैं जो भी फर्स्ट ईयर के हैं ना, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते होंगे। तो मैं इन जनरल ना, जैसे ऐसा होता है ना यार गाइडेंस चाहिए यार, बात कर रहे हो तो यार मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है। लाइक शुभांकर ने जब भी मेरे को कॉल किया, देखो मैंने बोला यार मैं खुद ही करना चाहता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं यार, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए जो मैं हेल्प कर पाऊँ तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, तो यार मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा, ठीक है। तुम फील फ्री करो रीच आउट करने को यार, कैसे भी मुझे देखो कॉल करोगे, हो सकता है कि बिजी हो कॉल नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, लिंक्डइन पे कर सकते हो, तुम्हें जो पूछना हो मेरे से यार मैं वो गाइड करूँगा तुम्हें, क्योंकि मैं जानता हूँ ना यार फैकल्टीज नहीं गाइड करती हैं, हमारे कॉलेज प्रोफेसर नहीं गाइड करते होते हैं, बट मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूँगा, ये ओपन सबके लिए बोल रहा हूँ। तो जिसको रीच आउट करना है, पूछना है, गाइडेंस चाहिए, प्रोजेक्ट में चाहिए, इंटर्नशिप में चाहिए, प्लेसमेंट में चाहिए, और जैसे जनरली मैं सारे स्टूडेंट से बात करता रहता हूँ पर वीक, किसी न किसी को फ़ोन लगा के जूनियर्स में, तो है ना, तो फील फ्री करना रीच आउट करने के लिए, ठीक है, इससे कोई टेंशन नहीं है। हाँ सर, यस सर, मतलब ये बहुत ज्यादा एक्टिविटीज, छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। आप अपने सीनियर से कैसे बात करते हो, फिर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उन पे आपके सीनियर्स का क्या इन्फ्लुएंस है, और सबसे बड़ी बात कॉलेज का, तो इस मौके में तो सिर्फ सीनियर्स ही बचते हैं जो प्रॉपरली गाइड कर सके। तो आप जितने भी हमारे इमीडिएट जूनियर्स हैं या फिर उनके जूनियर्स हैं, फील फ्री टू रीच आउट योर सीनियर्स एंड ट्राई कॉन्टेक्टिंग देम इन अ बिट प्रोफेशनल मैनर। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इशू हो जाता है, बट ये आपको टेक्निकली भी थोड़ा साउंड कर देगा कि हाँ किस लेवल पर हम प्रोफेशनली कैसे बात करें ताकि हमारी बात की इंपॉर्टेंस ज्यादा लगे और बड़े इफेक्टिव वे में प्रेजेंट हो। सो मूविंग ऑन, अब इस एक सेक्शन है Q&A सेक्शन। So anyone from the audience, from the listeners, can ask any question related to anything from anyone. So do we have a questions? Sir, Sumit this side. Actually, I was very interested in knowing verification engineer का actually role क्या रहता है, मतलब क्या क्या होता है इसमें, क्योंकि हमने उस चीज को कवर ही नहीं किया अभी पूरे सेशन में, हाँ तो हाँ और ये सर रोल के एक बारे चीज में मैं जानना चाह रहा था। इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि इसी जैसे सॉफ्टवेयर साइड पे जो होते हैं या CSIT वाले हैं, तो उनको रोल्स पता होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, डेटा साइंस, AI, जो भी है। लेकिन EC वालों को ये नहीं पता। तो सर वो भी थोड़ा सा एक हाँ हाँ, मैं ब्रीफ हो। क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी सर, लाउड एंड क्लियर। हाँ, तो एक्चुअली देखो इसी वालों में तुमको पता है नहीं पता है, तो कुछ मेजर हैं, जैसे कि यार अगर तुम वेब डेवलपमेंट में हो तो कुछ फ्रंट एंड इंजीनियर होते हैं, कुछ बैक एंड इंजीनियर होते हैं, एक डेवलपर होता है ना, डेवऑप्स बोलते हैं, ठीक है, एक डेवऑप्स है, डेवलपर काम है जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा होता है, एक एनालिटिक्स में है, वो एनालिटिक्स वाले में काम करता है, डेटा साइंस में काम करता है, ठीक है, मशीन लर्निंग का है। तो तुम्हें एक्चुअली इतना आइडिया मिल जाता है सोसाइटी के लिए। अगर इसी में बात करते हो ना, इसी में मेनली कई सारे डोमेन्स हैं, लाइक कम्युनिकेशन एक डोमेन है, ठीक है, जैसे कम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वायरलेस रडार सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है। और एक तुम्हारा एम्बेडेड सिस्टम एक डोमेन है, ठीक है। एक तो रोबोटिक्स वाला जो पार्ट है ना, जिसको रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, वो अब एम्बेडेड सिस्टम्स में आ सकता है, ठीक है। और इसी में एक चीज देखो, 4 डोमेन है, तुम लिस्ट लिख सकते हो ना एक्चुअली। क्या एक तो क्या मैंने बोला, एम्बेडेड सिस्टम है, और एक और क्या बोलता है, नाम भूल गया यार। एक एम्बेडेड सिस्टम, एक तुम्हारा VLSI है, एक एम्बेडेड सिस्टम है, एक लिनक्स डिवाइस ड्राइवर, मैं इसका नाम नहीं याद आ रहा,
लिनक्स डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। अब देखो मैं समझा देता हूँ इसमें क्या होता है और तुम्हें कैसे अप्रोच करना है अगर इन चारों में से पूछना चाहते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्बेड सिस्टम। एम्बेड सिस्टम एक्चुअली वो चीज़ होती है लाइक तुम फील कर सकते हो एम्बेड, जैसे कि तुम्हारा ये जो फोन में जो फर्मवेयर्स होते हैं ना, जैसे तुम्हारे अपडेट आते हैं फोन में अपडेट्स, है ना, तो एक्चुअली वो एम्बेड सिस्टम वाले अपडेट्स होते हैं। मतलब एम्बेड सिस्टम ऐसी चीज़ है मतलब जो तुम्हारे हार्डवेयर के लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी एम्बेड सिस्टम के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो तुम्हारा फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तुम्हारा सिस्टम है जो यूज कर रहे हो अभी, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें C++ और कुछ एम्बेड सिस्टम एक सब्जेक्ट है वो आना चाहिए, ठीक है। एक हो गया एम्बेड सिस्टम, एक होता है VLSI डोमेन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब एक्चुअली होता क्या है, तुम्हारे जैसे सामने लैपटॉप रखा है या फिर तुम्हारा ये फोन रखा है, तो एक तो तुम्हारा हार्डवेयर लेवल है ना, हार्डवेयर लेवल जिसमें चीज़ें काम कर रही हैं, जो हार्डवेयर है ना, चिप है, मेमोरी कार्ड है और रैम है और जो भी चीज़ें हार्डवेयर लेवल है, ठीक है। अब इसके हार्डवेयर के लेवल के ऊपर होता है सॉफ्टवेयर का लेवल रहता है, जिसे बोलते हैं एम्बेड सिस्टम या फर्मवेयर इंजीनियर बोलते हैं। जो फर्मवेयर समझते हो ना, फर्मवेयर टर्म से तुम लोग वाकिफ हो गए, लाइक आई गेस फर्स्ट ईयर को नहीं पता, लाइक सेकंड थर्ड ईयर तो वाकिफ होगा फर्मवेयर के टर्म से। तो फर्मवेयर डेवलप करना, तो वो एज अ लिनक्स डिवाइस ड्राइवर भी डेवलप करते हैं, ठीक है, एक ये रोल होता है। और एम्बेड सिस्टम वाले भी डेवलप करते हैं, ठीक है। तो फर्मवेयर हो गया, और फर्मवेयर के ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वाली लेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी दोनों करते हैं, CSIT वाले भी करते हैं, EC वाले भी करते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर, जिसमें तुम ऐप डेवलपमेंट करते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसमें CSIT वाले काम करते हैं एप्लीकेशन डेवलपर में। EC वाले नीचे की 3 लेयर्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग रोल्स होते हैं। एम्बेड सिस्टम्स में तो नॉर्मल तुम लोग समझ गए एम्बेड सिस्टम क्या करता है। अब VLSI में आते हैं, VLSI वाले क्या करते हैं। अब जैसे कि तुम्हारे फोन की जो चिप है, तुम सब लोग स्नैपड्रैगन समझते हो ना, स्नैपड्रैगन या फिर DDR4 DDR5 रैम समझते हो ना। तो सिनॉप्सिस में जब मैं काम कर रहा था ना, तो मैं DDR5 रैम पे काम करता। अब वो होता क्या है, वेरिफिकेशन इंजीनियर। अब देखो VLSI में 4-5 पोस्टें हैं, है ना। RTL इंजीनियर, RTL लिख सकते हो, हाँ, गूगल मारना पता चल जाएगा। RTL इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन इंजीनियर, एप्लीकेशन इंजीनियर, ऐसा करके बहुत सारी पोस्ट हैं। तो RTL इंजीनियर क्या करता है, अगर मुझे मान लो यार ये मेरे फ़ोन का कैमरा है यार, ठीक है, मेरे फ़ोन का कैमरा है या चिप है मान लो, तो एक बंदा होगा ना जो उसको, एक टीम होगी ना उसको डिज़ाइन करती होगी, ठीक है। उसके लिए कोड करना पड़ता है डिज़ाइन करने के लिए, कैमरा और हार्डवेयर, रैम, चिप, सब कुछ। तो वो आते हैं डिज़ाइन टीम में, ठीक है, डिज़ाइन टीम में वो RTL टीम होती है। अगर इसी में वेरिफिकेशन टीम क्या होता है, अब देखो, जब उसने डिज़ाइनर ने अपना एक RTL कोड टेस्ट कर बना लिया, ठीक है, RTL कोड डिज़ाइन कर लिया, लेकिन क्या है कि यार वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, प्रॉपर काम नहीं करता। तो एक वेरिफिकेशन टीम होती है, वो अपना कोड डेवलप कर रही होती है। किस चीज़ डेवलप कर रही होती है, एक आइडियल अप्रोच होती है। जैसे मेरा प्रोसेसर है वो 100% एफिशिएंसी दे, तो उसके हिसाब से वो अपना कोड डेवलप करती है, ठीक है। तो RTL टीम ने एक कोड डेवलप किया, एक वेरिफिकेशन टीम ने, फिर ये दोनों ऐसे सामने आके टेस्ट होते हैं, मतलब फिजिकली ऐसा ही होता है, सामने आके टेस्ट होते हैं दोनों। तो फिर पता चलता है यार ये कितना काम कर रहा है, नहीं कितना। तो एक होता है RTL टीम, होता है वेरिफिकेशन टीम। तो अगर इंडिया में बात करते हो ना, तो दोनों चीज़ों में काम होता है, बट वेरिफिकेशन RTL टीम में क्या होता है, तुम्हें एक्सपीरियंस ही होता है डिजाइनिंग टीम में। एज अ फ्रेशर्स तुम RTL टीम में उतना घुस नहीं सकते, उसके लिए तुम्हें क्या है कि MS वगैरह जाना पड़ेगा। तो MS का सीन है अगर किसी का, तो भी मुझसे पूछ सकता है, लाइक मेरा भी सीन था कभी MS जाने का। तो ठीक है, तो ये डायरेक्टली डिजाइनिंग वाली टीम में तुम वो फ्रेशर से लेंगे नहीं डिजाइनिंग वाली टीम में, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस ये होता है, या तो बहुत एक्सपीरियंस हो या तो तुम बहुत सीखे हुए बंदे हो, ठीक है। और एक अप्रोच होती है वेरिफिकेशन टीम। वेरिफिकेशन टीम में क्या होता है कि जो ऑलरेडी डिजाइंड RTL है ना, तुम उनको चेक करते हो और अपना कोड डेवलप करते हो। तो तुमने जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ कॉलकॉम सिनॉप्सिस का, तो DDR5 रैम है ना, तो DDR5 रैम आजकल आती है तुम्हारे GPUs में, है ना, NVIDIA के GPUs में आती है। और DDR4 रैम आती है तुम्हारे नॉर्मल रैम्स में, ठीक है। और तुम्हारे फ़ोन के रैम्स में आती है DDR3। तो एक्चुअली यही काम होता है, तुम DDR3 को और कैसे एफिशिएंट बना रहे हो, कैसे तुम जो लाइक मेमोरी का इनटेक आउटटेक होता है वो कैसे फास्ट हो जाए, रैम हीट अप नहीं करे, या फिर DDR4 से DDR5 में जाना है। तो मेरा काम क्या था, हम DDR5 को इनहेंस कर रहे थे DDR6 के लिए, उसमें कुछ चीज़ें ऐड अप कर रहे थे, कुछ हटा रहे थे। तो समझ गए, तो ये होता है वेरिफिकेशन इंजीनियर का काम। एक्चुअली इसी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार, बस ढूंढने की ज़रूरत है, लोगों को पता नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, थैंक्स सर। शायद से प्रवीण कुछ पूछना चाह रहा है। या प्रवीण, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग प्रवीण। अच्छा, एक जो भी पूछेंगे ना बता सकते हैं कौन से ईयर से हैं, क्या है। जी सर, आई एम फ्रॉम फाइनल ईयर।
ओके प्रवीण, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। या प्रवीण। सर एक क्वेश्चन था सर, मेरा डाउट है सर, आपसे पूछा भी था सर। सर VLSI स्टार्ट करने से पहले अगर जाना है तो मतलब जिसको कुछ नहीं पता है, वो एक मतलब बस 12th पास आउट है, फर्स्ट ईयर, मतलब उसको बेसिक नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ का, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए सर? कैसे स्टार्ट करना चाहिए सर? प्रवीण, देखो मैं बताता, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं ना तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, लाइक ये CSIT में भी हैं, लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, वो बाद में पढ़ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबके में कॉमन है, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज द बेसिक्स जो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में घुस सकते हो, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करो, फिर कुछ कोडिंग है, कुछ लैंग्वेजेस हैं अलग से सीखनी पड़ती है। C++ पाइथन में तो हम करते ही करते हैं ना अपना कोडिंग, प्लस अगर इसी में आते हो तो तुम्हें कुछ अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, वेरीलॉग है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आजकल पाइथन भी है, पर्ल भी है, तो तुम्हें जो अच्छा लगे वो सीख लो, ठीक है। तो स्टार्टिंग करो तुम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो बाकी लोग हैं यहाँ पे उनके लिए है कि जी सर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, VLSI पढ़ो, और EDC। अगर देखो एक तो भी मैंने जितनी भी बातें की ना यार, ये RTL वाली, वेरिफिकेशन वाली, ये डिजिटल डोमेन के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग डोमेन भी होता है, तो एनालॉग के लिए जिस तुम्हें EDC है सब्जेक्ट है, EDC तुम लोग जानते होगे ना, जो EC में यस सर। EDC एक सब्जेक्ट होता है। तो EDC तुम्हारा बहुत, एनालॉग पार्ट तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, ये वाला समझ गए ना, वो वाला पार्ट, तो वो उससे जी तुम सर। एनालॉग इंजीनियर बनते हो, और मैं अभी डिजिटल इंजीनियर में हूँ, डिजिटल वाले प्रोफाइल में हूँ, एनालॉग की जगह। तो डिजिटल वाले में आना है तो VLSI और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से चालू कर सकते हो, और एनालॉग में जाना है तो EDC और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से चालू कर सकते सर ये तो आपने बता चुका है सर। ये चीज़ ठीक है सर। इसको पढ़ने के बाद मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच हो। के इसको लिए क्या इसको करना पढ़ने चाहिए? के बाद इसको कहाँ? पढ़ने के बाद जो कोडिंग क्वेश्चन है उसको टैकल करो, और जो इंटरव्यू क्वेश्चन है उसको टैकल करो, बाकी काम कंपनी सिखा देगी। इंटरव्यू क्वेश्चन और जी सर। कोडिंग क्वेश्चन, जैसे जैसे वेरीलॉग है मान लो, तो वेरीलॉग तुम लोग तो तुम्हें कॉलेज में नहीं सिखाए जाएंगे, बाकी कॉलेज में सिखाया जाता है, हमारा कॉलेज ऐसे ही है, तो अपने आप सीखो, ठीक है, कॉलेज के भरोसे मत बैठना। कॉलेज में एक लैंग्वेज सर वही सिखाते हैं, पूछ रहा था सर। सर कॉलेज में लैब, वेरीलॉग VHT, एक्सक्यूज मी कॉलेज सर। में, या सर हाँ ये वेर सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वेरीलॉग जो है सर, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए सर? कैसे मतलब स्टार्ट करेंगे? लेमैन मतलब कुछ भी पता नहीं है तो नेप्टल, समझ में आए सर। एंड वेरीलॉग अगर पढ़ना है जी ना तो IIT के किसी प्रोफेसर का नेप्टल पे सीरीज पढ़ी है, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है, वो बेस्ट है अगर वो कंप्लीट कर लेते हो तो, ठीक है। तो तुम्हें क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तुमने पढ़ ली है और वेरीलॉग कर लिया है, अब इसी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर लो, तो क्या है कि तुम्हारा इधर डिजिटल डोमेन में घुस सकते हो। यही सेम चीज़ अगर फॉलो करोगे एनालॉग के लिए तो एनालॉग डोमेन में घुस सकते हो। और एक्चुअली पता है, देखो जितने भी IIT के बंदे होते हैं ना, वो अच्छी कंपनीज में रहते हैं, तो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे ना जो, वो मोस्ट प्रोबेबली किसी IIT से होंगे या फिर ऐसी जगह से पढ़े होंगे। तो अगर तुम नेप्टल के कोई से भी कोर्स कंप्लीट कर लेते हो ना, इन जनरल बता रहा हूँ, नेप्टल के कोर्स कंप्लीट कर लेते हो ना, तो तुम्हारा जो IIT के बंदे ने पढ़ा है ना, वो तुमने भी पढ़ा है, ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि सिलेबस उतना ही है। अब बाकी कितने डीप में घुस के पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वो बात अलग होती है, ठीक है। तो नेप्टल के कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो वो उससे बाहर का नहीं पूछेंगे, मतलब तुम्हारा एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है भाई, क्वेश्चन तो बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन एक जो जी सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा नेप्टल वाले कोर्स सर कॉन्फिडेंस नहीं आता, मतलब नेप्टल के पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उतना, क्योंकि हम में। लोग को सर कॉन्फिडेंस, मतलब वो मतलब ऐसा वैसा कॉन्फिडेंस देखो किसी को नहीं रहता है स्टार्टिंग में, कुछ इंटरव्यू सबके फेल होते हैं, हमारे भी फेल हुए हैं, मतलब कुछ निकले ही नहीं है, कुछ में हम बैठे ही नहीं है, ऐसा होता है। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना जब तुम सच में प्रैक्टिस करोगे। जैसे मान लो कि कॉन्फिडेंस का एग्जांपल देता हूँ, तुमने कोड पढ़ा हुआ है, जैसे तुम मान लो C++ कोडिंग करते हो, ठीक है, तुमने कोड पढ़ा हुआ है लेकिन तुमने कोड किया नहीं है, अब तुम इंटरव्यू में बैठोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा? तुम्हें नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, क्यों? क्योंकि तुमने यार वो प्रैक्टिकली वो चीज़ की ही नहीं है ना, जो तुम लिख रहे हो या बोल रहे हो, तो वो चीज़ बस करने से आएगी, है ना। तो इस चीज़ को पढ़ लो, चला के देख लो, जब तुमने चला के देख लिया तो तुम डर क्यों रहे हो? तुम उससे इंटरव्यू से बोल रहे हो कि यार मैंने चीज़ की हुई है, तुमने सच में की हुई है, तो डरने वाली क्या बात है? तो फिर अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बस कर लो उस चीज़ को, सिंपल, जी सर। है ना। सर लेकिन ये सर वेरीलॉग कोडिंग के लिए कुछ मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह मतलब यूज करते हैं, वो कुछ बता सकते सर तो? ऑफलाइन के लिए आप जो मॉडल प्रेफर सिम, ऑफलाइन के लिए मॉडल सिम है, और ऑनलाइन के लिए EDA प्लेग्राउंड है ना, वेबसाइट है EDA प्लेग्राउंड, वहाँ पे कर। सर ओके, मॉडल सिम बोले सर? हाँ मॉडल सिम। थैंक यू सर। थैंक यू प्रवीण।
Like here, Arish was there, na? Arish was raising his Yes, hand. sir. Yeah, Arish. Good evening, sir. My name is Arish from first year. सर जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट ईयर है, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, और आपको भी पता है हम लोग को जिस 6 मंथ अराउंड हुआ है और फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, एग्ज़ाम्स एंड सेम्स शुरू होने वाले हैं। तो सर ये 6 मंथ में तो ऑलमोस्ट 6 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं हम लोग के, हर 10 डेज़ और 15 डेज़ पे एग्ज़ाम असाइनमेंट, और इन सब में ही काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर क्लासेस छोड़ने के बावजूद बहुत टाइम रहता नहीं है कि एक्सप्लोर भी कर सकें। और जैसे कि मतलब नॉर्मल होता था तो समर वेकेशन वगैरह उसमें तो बहुत कुछ हम लोग मतलब सीख सकते थे, बहुत कुछ एक्सप्लोर होता है। तो अभी तो सर कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर तो ख़त्म ही हो गया, तो उतना चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाए सर। तो अब वो प्लान जिसमें फर्स्ट ईयर में हम तब एक्सप्लोर ज़्यादा चीज़ें तभी कर सकते जब टाइम और होता सर, उस पे क्या अभी सेकंड ईयर के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर ही करें या कुछ? एक्सप्लोर इन द सेंस मैं ऐसा बोलना चाहता था आरिश कि जैसे जैसे हम जैसे मान लो जैसे मैं भी कई सारे सेशंस वगैरह लेता हूँ, है ना, तो मैं कई सारी डिफरेंट चीज़ें बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यार हम एक्सप्लोर करने का इन द सेंस वो है कि ऐसा नहीं यार कि हम वो चीज़ जाने ही नहीं, तो क्या है कि हम लैग कर जाएंगे ना उस चीज़ में। जैसे कि मान लो कुछ टेक्निकल सेशन हो रहे हैं, है ना, लाइक कोई इंसान टेक्निकल चीज़ बता रहा है, तो एक्सप्लोर करने का इन द सेंस है हाँ यार उस चीज़ को अटेंड करो, उस चीज़ को थोड़ा फॉलो करो, करके देखो, और फिर कोई दूसरा सब कुछ और समझा रहा है। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई रोबोटिक्स पढ़ा रहा है, कोई पाइथन पढ़ा रहा है, कोई सी प्लस प्लस पढ़ा रहा है, तो एक्सप्लोर करने का इन द सेंस है यार कि सारी चीज़ें करके देखो। हमने रोबोटिक्स भी थोड़ी सी पढ़ ली और हमने करके देखा, हमने प्रोजेक्ट बना लिए, ठीक है, हमने सी प्लस प्लस करके देख लिया और प्रोजेक्ट बना लिए करके, पाइथन पढ़ लिया, तो ये मेरा एक्सप्लोर करने का मतलब है, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन है यार सिर्फ टाइम नहीं रहता एक्चुअली, जैसे कॉलेज का है, तो इसीलिए देखो जैसे एक चीज़ बोलता हूँ, मतलब तुम लोग अपने ऊपर नहीं लेना कि यार पर्सनल कमेंट मार रहा हूँ, लेकिन इन द सेंस ऐसा है जैसे जैसे तुम लोग क्लास कॉलेज चल रही होती है, तो कई सारे सीनियर्स हैं जो कुछ सेशंस वगैरह अरेंज करते हैं तुम्हारे लिए, है ना, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, है ना, अलग अलग इंस्पायर है, कोडियम है ना, ऐसा सोसाइटी है जो सेशन अरेंज करती हैं। तो देखो कुछ लोग होते हैं ना यार, जैसे कि यार हम अभी नहीं करेंगे यार, और हम बाद में करेंगे, कौन अटेंड करे। जैसे आज के सेशन था, अभी 56-70 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यार क्या फ़ायदा मिलेगा, जाने दो यार। एक्चुअली नहीं, एक्चुअली फ़ायदा मिलता है यार। तुम्हें अब देखो तुम लोग जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हो, तुम लोगों ने कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो मिल ही गए होंगे ना यार, यार हमें ऐसे करना है, सर ने ये चीज़ बताई थी यार, या उनसे ये गलती हुई थी, मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। या फिर जैसे मेल करने का है, जिसने नहीं सुना यार वो डिसअपॉइंट होगा 100 मेल करने के बाद, वो बैठ जाएगा। देखो देखो दिक्कत क्या होगी, जैसे तुमने सुन लिया, तुम्हें पता है सर 100 मेल के बाद बैठना नहीं है, मेल करते रहना, रोज के 50 मेल जाने चाहिए। अब जिसने नहीं सुना वो क्या 100 मेल कर देगा, सोचेगा यार रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो सकता, बैठा रहेगा। तुम्हें ये डिफरेंस कहाँ से हुआ, इसी सेशन से हुआ ना, कोडेम के सेशन से हुआ ना। तो ये फायदा है सेशन अटेंड करने का। जैसे मान लो कि मैं रोबोटिक्स से कुछ सिखा रहा हूँ अपने टेक्निकल सेशन में, तो क्या है कि अगर एक्सप्लोर नहीं करोगे, चीज़ जानोगे नहीं, तो उस चीज़ में आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। तो फायदा होता है, तो तुम एक्सप्लोर ऑलरेडी, अगर तुम सेशन अटेंड कर रहे हो उस रह के, थोड़ा बहुत अपना इनपुट दे रहे हो, तो ऑलरेडी तुम एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को, है ना। तो वो वाली चीज़ें कहना चाह रहा हूँ। तो देखो तुम जो खुद से कर सकते हो पर्सनल लेवल पे करो, प्लस जो तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो सीनियर्स तुम्हारे लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं कॉलेज लेवल पे, तो उसमें पार्टिसिपेट करो। सिंपल चीज़ है एक्सप्लोर करने का, पार्टिसिपेट करोगे ऑलरेडी सीख भी जाओगे और चीज़ें पता भी चल जाएंगी, प्लस तुम्हारा नेटवर्क बढ़ जाएगा, तुम अलग अलग सीनियर से मिलोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो फिर अलग अलग लोग काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, तुम्हें आईटी फील्ड में आना है, बहुत सारे सीनियर से जो आईटी कंपनी से फील्ड है, तुम्हें एम्बेडेड सिस्टम्स की कंपनी में आता है, तो मेरे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर मेरे ऐसे सीनियर्स हैं जो एम्बेडेड सिस्टम्स में, तुम्हें वीएलएसआई में आना है, मैं पर्टिकुलर वीएलएसआई में काम कर रहा हूँ, तो तुम कैसे जानोगे यार मेरे को, मैं कैसे जानूंगा कि मोहम्मद आरिश नाम का लड़का यार ट्रिपल आईटी भोपाल के फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, हाउ वुड आई नो। मैं शुभांकर को कैसे जानता हूँ, ऐसे जानता हूँ यार, हम शुभांकर वगैरह कॉलेज टाइम में ऐसे ही काम करते थे, है ना, कुछ इवेंट हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, कुछ फोर्थ ईयर के हैं, कुछ थर्ड ईयर के हैं, सेशन कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, है ना। हमने रोबोटिक्स क्लब स्टार्ट किया था, याद होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में, तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल सर, मेरा फर्स्ट ईयर था। हाँ उसका फर्स्ट ईयर था, मेरा सेकंड ईयर था, मतलब मिलके स्टार्ट किया था, तो वो चीज़ रहती है, समझ गए। तो जो चीज़ें हो रही है कॉलेज में उसको अटेंड करो, समय दो, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। सीनियर्स तुम्हारे लिए कर रहे हैं यार, मतलब इसमें सीनियर्स का कोई फायदा नहीं हो, तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, उनका जो होना था हो चुका है। अच्छा आदित्य सर, एक चीज मैं इसमें पूछना चाहूंगा। इमेजिन करिए, ये इस टाइप के जो हम सेशन करवा रहे हैं, ये आपको आपके फर्स्ट ईयर में मिलते हैं या सेकंड ईयर में मिलते तो क्या? यार ये चीज़ है, ये चीज़ है, पता है, एक मेरा पर्सनल एक वो है, लाइक देखो अगर मतलब ये मेरा ग्रेटिट्यूड है इंस्पायर सोसाइटी के लिए। लाइक मैं जैसे तुम बोल रहे हो ना यार फर्स्ट ईयर में सेशंस मिलते हैं, तो अगर मैं बात करूँ ना, तो ये सेशंस मुझे मिले हैं अपने सेकेंड ईयर में इंस्पायर से।
तो इसलिए मैं आज इस लेवल पे हूँ, इस जहाँ पे भी स्टैंड करता हूँ ना, मैं सच में यार, मैं ऐसा कुछ सारा क्रेडिट पर्सनल नहीं लूंगा कि मेरी मेहनत से हुआ है। एक्चुअली मेरी कुछ मेहनत है उसमें, बाकी मेहनत मेरे सीनियर्स की है और इंस्पायर सोसाइटी की है, ऐसा चाहिए। तो हम आपके लिए इसलिए कर रहे हैं, इसीलिए हम देखो अलग अलग सोसाइटीज से आपको रीच आउट कर रहे हैं। लाइक जैसे कोडियम से भी हम देखो, हम सेम ही कंटेंट दे रहे हैं, हम कोडियम से भी आपको कंटेंट दे रहे हैं, हम इंस्पायर की तरफ से भी कई बार वो कंटेंट देते हैं आपको। तो द थिंग इज, आप तक वो कंटेंट पहुंचना चाहिए, बस ये चाहते हैं हम, ठीक है। तो हम मुझको वो चीज़ मेरे इंस्पायर के सीनियर्स ने सर गाइड की, तो मेरे फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तो वो अगर आप लोग सर जो गाइड नहीं ले पा रहे हो, 2 मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ, जस्ट अ मिनट, है ना। तो जैसे कि अगर जो 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 लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको पता है तो इट्स वेल एंड गुड, जो नहीं कर पा रहे वो अलग अलग सोसाइटीज के मीडियम से ना रीच आउट कर सकते हो यार अपने सीनियर्स को, और फर्स्ट ईयर में जो सीख जाओगे ना यार, तो फोर्थ ईयर तक ऐसे ही प्लेसमेंट आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि फर्स्ट ईयर में नहीं सीखोगे, सेकंड ईयर में नहीं सुनोगे सीनियर्स का ना यार, तो फोर्थ ईयर में परेशान होगे, वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो लकीली आई गॉट द गाइडेंस ड्यूरिंग माय सेकंड ईयर, बट जिसको नहीं मिलता वो यार, सीनियर्स तुम्हारे तक रीच आउट कर रहे हैं, तुम्हारे पास सीनियर्स हैं, तो तुम उनसे बात करो। या समवन वाज देयर ना, लाइक हु वाज आस्किंग और स्पीकिंग समथिंग, प्लीज। अच्छा, और किसी को क्वेश्चन है वो पूछ लो। दिशा भी है यहाँ पे, उससे पूछना है उससे भी पूछ सकते हो। और उसके अलावा दिशा की और आदित्य सर की लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक जो है हम लोगों ने चैट में ऐड कर दिए हैं, उनसे कनेक्ट जरूर करिए। अगर आप लोग अपने और कोई कॉन्टैक्ट यहाँ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। And like one more thing, like you talking about Disha ना, like actually मैं जानता नहीं था कि like Disha, like actually क्या होता है जब तुम जब फ्रेशर्स आते हैं, तो एक्चुअली हमारे पास होता है यार कौन कौन फ्रेशर है, कौन कौन लोकेशन से आया है ना। सो वी रीड आउट द नेम्स, है ना, कि कौन यार किस एरिया से है, किसको क्या आता है। तो जनरली लाइक मैंने दिशा का नाम सुना नहीं था, like Shubhankar only told me, sir, there is a like a fresher in our college, Disha, who got selected in LinkedIn program. So like I visited her. सीजी पे कर दिया। और आपकी सर क्या क्या आई थी सीजी? CGPA, अच्छा मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर CGPA पे आते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली लाइक आई विजिटेड दिशा's प्रोफाइल, like I like to congratulate Disha, like she has done like a very wonderful thing ना during his second year। like मुझे वो चीज़ खुशी हो रही थी यार कि चलो कोई तो यार अपने सेकेंड ईयर में यार जो गाइड कर सकता है। तो दिशा यार कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, है ना। तो मैं चलो ठीक है, सीनियर्स को जो भी है, लेकिन एटलीस्ट तुम अपने बैच के मेट्स को और अपने जूनियर्स को तो गाइड कर ही सकते हो, ठीक है। Yeah, सो thank you, sir. Thank you. बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और रही बात CGPA की यार, तो एक चीज़ बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखो फर्स्ट ईयर में जितने CGPA स्कोर कर सकते हो कर लो यार, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हलवा होता है CGPA में तुम्हें ध्यान देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर ध्यान दो CGPA में, ठीक है। मतलब ऐसा भी मत करो यार कि CGPA में 10 चाहिए, 10 CGPA चाहिए, एकदम CGPA पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जितने आ जाएं ठीक है, लेकिन कोशिश करना है यार कि 7.5 से ऊपर बने कैसे भी, क्योंकि कंपनीज आती हैं 7.5 CGPA का लिमिट रख देती हैं कि यार हमें 7.5 CGPA चाहिए। तो अगर तुम टेक्निकली स्ट्रांग होगे, तुमने सब कुछ किया होगा, लेकिन यार मान लो अगर CGPA कम रह गया तो कंपनी के इंटरव्यू में नहीं बैठ पाओगे, इवन ऑफ कैंपस बहुत दिक्कत होगा अगर CGPA कम है तो। फिर मतलब एक क्राइटेरिया होता है, मैं नहीं कह रहा सब कुछ CGPA होता है, सब कुछ CGPA, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम CGPA के हैं फिर भी उन्होंने कई सारी चीज़ें क्रैक की हैं, बट एक क्राइटेरिया होता है टू बी इन द सेफ साइड, CGPA थोड़ा अच्छा रखना है, ठीक है। और कई लोग यार ऐसे होते हैं जिनका CGPA अच्छा नहीं होता है और मे बी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, और लेकिन अगर उन्हें वो जस्ट एक CGPA के क्राइटेरिया पे आउटलिस्ट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। हाँ बहुत रिग्रेट होता है। लाइक मैं नाम नहीं लूँगा, लाइक मेरे फोर्थ ईयर में ही ऐसे कई सारे दोस्त हैं यार जो बेचारे बोलूँगा यार, मतलब किस्मत वाली बात होती है। एक तो यार एक ऐसा दोस्त है यार, मतलब टेक्निकली बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था। द थिंग इज यार, वो HR राउंड में जाके यार उसको बेचारे को वो कर देते थे यार कि यार HR राउंड में जस्ट बिकॉज थोड़ा स्पीकिंग स्किल वाला कम्युनिकेशन रहता है यार कि यार स्पीकिंग में थोड़ा वैसा है, वो चीज़ें अपनी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ना। तो अगर तुम्हें जहाँ भी बोलने का मौका मिले यार, इस सारे फ्रेशर्स के लिए जो फर्स्ट ईयर्स में है यार, अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाने वाले हैं उनके लिए, कि यार अगर तुम्हें मौका मिल रहा है ना यार कहीं बोलने का, कोई सोसाइटी तुम्हें स्टैंड दे रही है, सोसाइटी तुम्हें इनवाइट कर रही है बोलने का, यार टेक अप दैट स्टैंड। क्योंकि अभी नहीं बोलोगे ना यार तो क्या होता है ना यार, वही चीज़ होती है कि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, द थिंग इज वो अपनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अपने इंटरव्यूअर को या फिर अपने HR को, अपने इमोशंस, तो वो चीज़ें यार ना लैग कर जाती हैं। तो वो चीज़ मत होने देना अपने साथ, तुम्हारे पास समय है अभी, तो बी अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी जो आपको वो करे, है ना, इनवाइट करे। और यार देखो खुल्लम खुल्ला पार्टिसिपेट करो यार, ठीक है।
गिन के सोसाइटी कितनी है तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारा कॉलेज ही कितना बड़ा है, तुम्हारा कॉलेज वर्चुअल है यार अभी, ठीक है, तो तुम्हें क्या एक जगह बैठना है, कुछ करना नहीं है, टेंशन ही नहीं है, तो जो भी है सीनियर से कांटेक्ट है, करो, सीखो चीजें, है ना। ऐसा नहीं यार कि यार क्यों करें यार, ये सर रोज आ जाते हैं, रोज पकाते हैं, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। सर ऐसे जनरली पूछ रहा था, इंस्पायर की एक ब्रांच ट्रिपल आईटी में खुलेगी क्या आगे चल के? खुल चुकी है मतलब सेपरेटली भी? अच्छा, चल रही है? ऑलरेडी चल ही रही है, लाइक आई वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ट्रिपल आईटी हु एस्टैब्लिश्ड इंस्पायर इन अ ट्रिपल आईटी, है ना, तो ऑलरेडी चल ही रही है। जैसे अपनी कोडेम कर रही है काम, इसी तरह अपना लिटरेसी क्लब भी है। अच्छा अजय शुभांकर, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के सेशन रखे हैं, उसमें अपने अलग अलग सोसाइटीज के बारे में बताया हो इनको, मैंने तो रखा है, लेकिन मुझे याद है लाइक हमने फर्स्ट सेशन रखा था, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया सेशन का, आराम। तो मैंने आराम में एक्चुअली सारी सोसाइटीज को कवर किया था कि यार कौन कौन सी सोसाइटीज हैं, लिटरेसी क्लब है, कोडिंग क्लब है, अपना टेक्निकल में है, तो मैंने कवर किया था। तो सोसाइटी पैरेलली रन कर रही हैं, डिफरेंट सीनियर्स हैं, तुम जानते हो उनको। आई थिंक सर कोडेम का भी तो हुआ था। हाँ, कोडेम का भी हुआ था, आई रिमेम्बर। हमने इंट्रोडक्टरी करवाया था सर। करंटली जो अभी सेकंड ईयर में है और जो थर्ड ईयर में आने वाले हैं, तो इन लोगों के ओरिएंटेशन के टाइम पे क्या था, जितनी भी सोसाइटीज थी मैनेट और ट्रिपल आईटी की, सबने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दी थी। तो वो वाली चीज यहाँ पे तो नहीं हो पाई ओरिएंटेशन के साथ में, लेकिन हाँ अलग से जरूर ओरिएंटेशन में तो जरूरत नहीं है यार। देखो ओरिएंटेशन में क्या होता है ना, एक पता है मुझे बहुत गंदा लगता है, जहाँ हमारा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आता है ना बीच में, मुझे ना ऐसा चिढ़ मच जाती है यार कि यार इनसे दूर रहो, ठीक है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही है, ठीक है, वो तुम बोलोगे ना कि सर मैं अपने फ्रेशर्स के लिए थोड़ा कुछ करना चाहता हूँ, तो वो 4 रूल बता देंगे यार, तुम ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, आखिर तुम फर्स्ट में नहीं करना है, ऐसे में जाओ, एक तो हम करना चाह रहे हैं, तुम करने नहीं दे रहे हो, वो चीज रहती है। तो ओरिएंटेशन तुम्हारा कॉलेज के लोगों ने लिया होगा, तो उन्होंने क्या ही बताया होगा, हमें पता है, वैसा उल्लू बनाते हैं ना ओरिएंटेशन को कहने के लिए, ये ब्रांच है, इसमें वो होता है, उसमें वो होता है, वो होता है, वो होता है, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया होता, सारे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट होते हैं, अपने नाम पे जेल देते हैं। तो अगर तुम्हें सच्चाई रीच आउट करनी है, टॉक टू सीनियर्स, वो सब बताएंगे तुम्हें, ठीक है। ओके, और क्योंकि सर बहुत लंबा सेशन हो गया, तो इफ देयर आर नो मोर डाउट्स, अब हम एंड कर सकते हैं सेशन। या डेफिनेटली। अच्छा बस 2-3 चीजें हैं यार, मैं बस कंक्लूड करूंगा, बाकी तुम हाँ लोग सर, बिल्कुल। पहली चीज, दोस्त अच्छे रखना अपने कॉलेज में, ठीक है, तुम्हारा कॉलेज कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब हम यार हमारा निकल गया है, ठीक है, दोस्त बहुत अच्छे बनाना अपने कॉलेज में, पहली एडवाइस। दूसरी एडवाइस, जो चीज़ कर रहे हो ना यार, वो अपने बेस्ट पे करना। तुम्हें प्लेसमेंट लेना है, अपने बेस्ट पे लेना प्लेसमेंट, ठीक है, अपने प्लेसमेंट लेना है, गेट करना है, जो भी चीज़ करनी है, कोडिंग करनी है, जो भी करना है अपना बेस्ट करना, ठीक है। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ यार, सीनियर से कांटेक्ट बहुत अच्छे बनाना, ठीक है। ऐसे बहुत कम सीनियर्स मिलेंगे, ऐसे सच्ची कह रहा हूँ, ऐसे बहुत कम सीनियर्स हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल हियर टू सुमित है, सुमित, यू नो सुमित ना, लाइक सुमित ही है शायद ना, जो स्टूडेंट एक्टिविटी के उसमें बोल रहा है ना, सुमित। जी हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, है ना सुमित यार, कैन यू प्लीज ओपन योर कैमरा एंड शो अप टू ऑल। एक्चुअली क्या है ना यार, कि हमारे जो फ्रेशर्स है ना, वो जानते नहीं है हमको, एक्चुअली नाम से जानते हैं, चेहरा नहीं देखा किसी ने हमारा, है ना। तो एक्चुअली लाइक सुमित इज देयर, है ना, शुभांकर इज देयर, आई एम हियर। एक्चुअली बहुत ही कम सीनियर्स है ना तुम्हारे पास, सच्ची बोल रहा हूँ, फ्रेशर्स जितने भी सुन लो, बहुत ही कम सीनियर्स है तुम्हारे पास जो तुम्हारी हेल्प करते हैं, ठीक है। लाइक इंस्पायर सोसाइटी में कुछ सीनियर्स हैं, लाइक यू नो देम, है ना, लाइक विक्की सर हैं, निखिल है, मैं हूँ, है ना, लाइक पास आउट में तेशर हैं, लाइक अदर देन देम, लाइक सुमित इज देयर, आई नो सुमित पर्सनली, आई नो सुमित एंड शुभांकर। जैसे बहुत कम सीनियर्स है जो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो अगर वो तुमको रीच आउट कर रहे हैं किसी प्रोग्राम्स के लिए, है ना, सो यार मेक गुड कनेक्शन विद सीनियर्स। ये 3 चीजें हैं, बस ये 3 चीज बोलूंगा। एक अपना मेंटर मतलब सीनियर को मेंटर बना लो, सबसे बेस्ट है। तो अपना मेंटर यार बहुत अच्छा रखो, अपने दोस्त बहुत अच्छे बनाओ, और एंजॉय करो अपने कॉलेज लाइफ को। तो थिंग इज, जो चीज कर रहे हो ना, प्लेसमेंट लेना है प्लेसमेंट लो, जो भी करना अच्छे से करो। ये 3 चीजें हैं बस, ठीक है, मतलब मेरी तरफ से इतना ही है, ठीक है। श्योर सर, काफी इंसाइटफुल। अच्छा एक आध चीजें, एक कुछ बचा है क्या शुभांकर? हाँ एक चीज यार और है कि यार फर्स्ट ईयर में 196 लोग हैं, सेकंड ईयर में 160 के आसपास लोग हैं, बट हमारी स्ट्रेंथ इन सारे प्रोग्राम्स के लिए, चाहे इवन एल्गोरिथम्स भी हो, उसके लिए सिर्फ अराउंड मैक्स 80 या 100 जाते हैं। ये एक मेरा सबसे गिला है, ठीक है। हम लोग मेहनत करते हैं और हम लोग चाहते हैं यार तुम लोग इसको अटेंड करो, तो जिसके भी जो फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर बोलो, अपने पीयर ग्रुप में बोलो कि अटेंड ज़रूर करो। अच्छा, इसी में शुभांकर ने एक चीज़ बोली है, देखो एक चीज़ मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों का नाम ही लूँगा।
ये जो शुभंकर बोला अटेंड करो यार, हम भी सुनते थे कभी किसी जमाने में, ठीक है, हम करते नहीं थे, लेकिन मतलब मैं करता था, मेरे दोस्त नहीं करते थे। एक प्रैक्टिकल इंसिडेंट बता रहा हूँ, हो सकता है तुम रियलाइज कर पाओ तो तुम मानोगे। लाइक ये चीज जब मैं अपने सेकेंड ईयर में था, है ना, सेकेंड ईयर में था, तो लाइक मैं अपने इंस्पायर, जैसे तुम लोग जानते हो मैं इंस्पायर से कनेक्टेड हूँ, है ना, मैं अभी करंटली इंस्पायर चला भी रहा हूँ एज अ पर्सन। तो मैं इंस्पायर के सेशन रेगुलरली अटेंड कर रहा था, तो मेरे कुछ दोस्त थे यार, वो मुझे मना करते थे। मैं साफ बोल रहा हूँ, ये होता है, तुम्हारे साथ भी होगा, और ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। तुम्हारे दोस्त हैं तुम्हें मना करेंगे यार, जैसे तुम यहाँ पे भी आए हो, कई दोस्त रहते हैं यार, क्यों बार बार जा रहा है, क्यों सीख रहा है, ठीक है, वो एक घिसी पिटी 4 लाइन होती है। हाँ 4 लाइन होती है, ठीक है। और लेकिन देखो मैं ये चीज़ आज लिख के बोल सकता हूँ यार, मैं जिस जगह पे हूँ ना, बस उसी गाइडेंस की वजह से हूँ जो मुझे अपने सीनियर से मिला है, जो मुझे इंस्पायर सोसाइटी से मिला है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो वही सेम चीज़ है यार, तुम दोस्तों के पास वही दोस्त ना आज मेरे को रीच आउट कर रहे हैं यार, कुछ होने यार भाई, कुछ करा दे यार, मेरी CV रिफर करा दे यार, कैसे भी कराते हैं, मतलब ये चीज़ होती है प्रैक्टिकली। तो उन्होंने उस वक्त नहीं सुना ना अपने सीनियर्स की, अपने उस सोसाइटी की, आज वो प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो यार 2 चीज़ें हैं, या तो अपने सीनियर्स की, जो अच्छे सीनियर्स हैं, अच्छे, मैं सारे सीनियर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ सीनियर्स हैं तुम्हें यहाँ वहाँ टहलाएंगे, लेकिन कुछ सीनियर्स अच्छे हैं, या तो यार उनकी सुन, अभी सुन लो, या तो यार उनकी फिर जब समय निकल जाएगा तब सुनना, या तो अभी दोस्तों की सुन लो, 2 चीज़ें हैं। मैंने क्या किया, मैंने बना के चला, मैं सीनियर की सुनता था, फॉलो करता था, प्लस मैंने अपने दोस्तों से एक दोस्ती लिमिटेड कंटिन्यू रखी यार, कि हाँ दोस्त हैं, एक नॉर्मल सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मना कर रहे हैं, मैं सेशंस नहीं अटेंड कर रहा है, फिर कुछ नहीं कर रहा। तो ये तुम्हारे ऊपर है, अगर खुद तुम रिलेट कर पा रहे होगे चीज़ें, यार लोग मना करते हैं, थोड़ा वो लगता है कि यार ऑकवर्ड सा लग रहा है यार, हम ऐसा चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाँ ठीक है। होशियार से होशियार लोग कर रहे हैं, देखो अगर हम लोग गलत कर रहे होते तो यार हम लोग इस पोजीशन पे नहीं होते, ठीक है। मैं गलत कर रहा होता तो मैं आज इतना वो पैकेज नहीं होता, शुभांकर सुमित ये गलत कर रहे होते तो यार ये चीज़ अरेंज करके तुम्हें बोल नहीं रहे होते, जाहिर सी बात हम गलत नहीं है। सो अटेंड दोस्त, बस रिक्वेस्ट है मेरी, बस मैं तो यार क्या है कि आखिरी बार हूँ, कुछ लोग से मेरी बात होती है, तो हो सकता है उनसे बात होती रहे, जैसे कि जो लोग को नहीं जानता हूँ उनके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग मुझको नहीं जानते उनके लिए बोल रहा हूँ। दैट्स ऑल, कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलेंगे सर ने पका बिल्कुल दिया, बोलेंगे सर ने पका दिया, काफी ज्यादा लंबा सेशन हो गया, पर काफी कुछ कवर एक्चुअली हो गया। मजे बहुत आए। बिल्कुल अच्छा सेशन था। और चलो अगला जो हमारा सेशन होगा उसका एडवर्टाइजमेंट थोड़ा अभी कर देता हूँ। अगला सेशन हमारा 3 या 4 जुलाई को होगा, जब एंड सेम फर्स्ट ईयर के खत्म हो जाएंगे, और उसमें एक क्षितिज सिन्हा है, उसने रिसर्च इंटर्नशिप की है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको गूगल पे सर्च करना, यूनिवर्सिटी ऑफ मैकमास्टर में वो इंटर्नशिप कर रहा है, और एक आध उसने और भी इंटर्नशिप्स करी हैं, मैं खुद होऊंगा उसमें। मैं करेंटली एनवीडिया में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो यार और कुछ ऑल्टरनेट पाथ्स भी होते हैं जो कि जनरली लोग फॉलो नहीं करते, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, तो हम लोग बताएंगे, और पार्टिसिपेशन थोड़ा बढ़ा सकते हो। विल बी रियली ग्लैड टू हैव यू ऑल। शुभांका वन मोर थिंग, लाइक तुमने बोला था ना यार कि इधर कुछ लोग हैं जैसे उनको गाइडेंस नहीं है, जैसे कि क्या होता है, हमने सेशन हाँ रखा है हाँ मैक्सिमम 1-1.5 घंटे का रहता है, हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जैसे होता है, जैसे मैंने फील किया है यार, हम ओपन अप आपके सामने से कुछ पूछ नहीं पाया, बोल नहीं पाए, तो जस्ट एक पर्सनल हेल्प के लिए, अगर मैं लाइक मेरा व्हाट्सअप है, सब लोग मुझे रीच आउट करते हैं ना, तो अगर किसी को मेरा नंबर चाहिए ना, दे सकते हो, ऑन द स्पॉट दे सकते हो, चैट में दे सकते हो, स्क्रीन पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो जो जानते हैं मुझे वेल एंड गुड, जो नहीं जानते दे कैन हैव माय नंबर, दे कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। यार मैं अपनी तरफ से इतना ही कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए, है ना, क्योंकि मैं पास आउट हो चुका हूँ यार, तो एक फ़ोन ही है माध्यम जिसमें तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेक माय व्हाट्सएप नंबर, है ना, रीच आउट टू मी इफ यू नीड मी एनी टाइम, है ना। शुभांकर शेयर कर देना नंबर, ठीक है। सुमित मैंने व्हाट्सएप कर दिया, वो शेयर कर दे चाहे, है ना, लाइक यू कैन शेयर इन देयर फर्स्ट ईयर ग्रुप्स, और है ना, जैसा भी है तुम शेयर कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दो, वो 999 वाला नंबर है, तुम लोग शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज यार, यू शुड रीच आउट, यू शुड आस्क, यू शुड डू थिंग्स, चैट में पोस्ट कर ओके। सर सुमित सर का शुभंकर सर का नंबर चाहिए। कौन बोल रहा है? मेरा नंबर तो भाई पूरे फर्स्ट ईयर के पास है शुरू से। सुमित थैंक्स यार मेरा नंबर शेयर करने के लिए। यार जो भी बोल रहे हैं ना, अपना प्लीज नाम जरूर बताएं। सर मैं ऋषि फर्स्ट ईयर से। ऋषि पूरा नाम बोलो। अच्छा ऋषि सिंह है। ऋषि सिंह फर्स्ट ईयर से। ऋषि सिंह, मैंने इसको क्या ब्रांच है? लीडर बोर्ड पे देखा था उसके कोडिंग में। या ऋषि सिंह, आई नो ऋषि फ्रॉम फर्स्ट ईयर।
और कोडेन का मैंने एक डिस्कॉर्ड नंबर सर्वर शेयर भी कर है, दिया। वहां पे भी पूछ लोगे ना तो वहां पे भी सब लोग किसी चाहे कॉन्टैक्ट डिटेल हो चाहे कुछ हो वो अच्छा वहां शेयर कर देंगे। एक मिनट शुभंकर, एक हाँ मिनट। मुझे एक्चुअली बहुत ही बोलना चाहिए खराब डाउट आया। मुझे किसी ने पूछा कि अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ आ रही तो फिर मैं डाउट कहाँ पूछूं, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या डीएसए में किसी ने हाँ तो डिस्कॉर्ड मैंने सर्वर उससे बोला कि शेयर कर सकते हैं इसमें। हाँ, मैंने उससे बोला कि डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया किस लिए था, तो फिर उसने मुझे बड़ा उससे बोला कि मतलब वहां पे सर अजीब लगता है सबके सामने पूछना। तो यार वो अजीब नहीं है, वही तो सबसे ज्यादा फायदे की बात है। कई लोग होंगे जिनको वही सेम डाउट होगा, जिनको वही सेम क्वेश्चन होगा, एक्चुअली वो लोग भी लोगों के उसको मन में ये पढ़ होता लेंगे, है ना उनका भी कि फायदा होगा। यार मेरा ये हाँ डाउट है, तो लोग क्या सोचेंगे या सर क्या सोचेंगे या वो मैम क्या सुन के सोचेंगे। मुझे बहुत खराब लगा था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और वहां भी पोस्ट कर दिया करो, कुछ नया ना आ रहा हो तो कोई ना कोई पक्का हेल्प कर देगा वहां पे। भाई वो एक और बनाए चीज है कि जिस फेज से तुम उसको निकल हेल्प रहे कर हो देगा। उस फेज से हम निकल चुके हैं, सेम जगह से, बहुत गरीबी थी, तो हम उसी तरीके से हेल्प कर पाएंगे। ओके तो शुभांकर भाई, हाँ हाँ बहुत रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो गई है, एंड कर देते हैं, ठीक है? डेफिनेटली। नेक्स्ट सेशन। चलो, चलिए सर, बहुत मजा आया, दिशा बहुत मजा आया, थैंक यू सर। आदित्य सर बहुत 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 इंफॉर्मेटिव धन्यवाद था, आपको। दिशा और बहुत थैंक यू, हाँ बहुत बढ़िया था। Thank you so much, Aditya sir and Disha and थैंक यू। Dharmishta. थैंक यू एवरीवन कि आप लोग ने ज्वाइन किया और टॉलरेट किया हमको इतनी देर एंड तक। या थैंक यू पौने 2 स्पेशली मैम। घंटे स्पेशली And जो for थर्ड ईयर से हैं, yeah, धर्मिष्ठा, uh, तो तुझे देख के मुझे लगा कि थर्ड ईयर से स्पेशली जो है, क्योंकि मुझे समझ आता हमारे बैच सबसे कम पार्टिसिपेशन होता है इसी चीजों में। हाँ ये मैंने जबकि भी देखा है। जबकि अपने बैच में मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको नहीं पता है कि कैसे अप्रोच करना है, हाँ क्या करना है, हाँ फिर वही भी आज मैंने जब ज्वाइन किया तो मतलब मेरे को इतनी सारी चीजें सीखने को मिली, लाइक सर ने जो बताया फ्रस्ट्रेशन हैंडल करना एंड लाइक सब कुछ, मतलब मेरे लिए काफी अच्छा सेशन था। तो मैंने इसलिए स्पेशली मैंने अपनी तरफ से थैंक यू बोला है सर को एंड दिशा को। थैंक यू सो मच। एंड थैंक्स आयुष, जहाँ पे भी है तूने भी अच्छा कंडक्ट किया अपनी तरफ से। ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड करते हैं, लीव कर सकते हो। थैंक यू होल टीम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।